نہیں فار اے شارٹ پیریڈ ٹھیک ہے, اگر آپ کو جلدی ریزلٹ چاہیے آپ کر لیں, آپ کیٹوسس میں جاتے ہیں, پھر آپ مگر آپ کے جگر پہ اثر, اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو آپ کے جگر پہ اثر ہوتا ہے. اور اب تو آپ کو لیور کو ہیلدی رکھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ لیور ریلیٹڈ پرابلمس کتنے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں نا, کھانے کے لیے بنائی ہے, لیکن اس کا پورشن اینڈ نیوٹریشن دیکھ کے اگر ہم کھائیں نا بیلنس کر کے تو ریزلٹس اچھے آتے ہیں. کبھی بھی ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے نہیں لگ جانا چاہیے کہ بس یہی کھانی ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ویٹ لاس ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, اور پورشن کنٹرول اور باقی باتیں جو آپ نے کہیں وہ تھوڑا اور ایکسپلین کر دیجیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. میڈم اصل میں میرا ویٹ پہلے 65 تھا, ابھی شادی کے بعد تقریباً 85 ہو گیا. تو جی ٹھیک ہے 65 تھا, ٹھیک ہے ابھی 85 ہو گئے. آپ کا وزن کیوں بڑھ گیا ہے شادی کے بعد اتنا؟ پتا نہیں کیا, میری مسز اصل میں کھانا اچھا بناتی ہے, اسی وجہ سے پتا نہیں کیا. ہاں آؤٹ آف کیوریوسٹی میں نے پوچھا کہ کیونکہ بڑا چلو 5, 6, 8 کلو بڑھ جائے, یہ تو اکٹھے ہی 20 کلو بڑھ گیا. ہاں اچھا, مسئلہ یہ کہ کھانا اچھا گھر میں بنتا ہے تو پیٹ دبا کے کھاتے, تو اسی وجہ سے پتا نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میری آج تقریباً 6.5. 6.5 کیا ہوتا ہے؟ 6.5 فٹ. 5'7"؟ جی جی 5'7" اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم آپ نے ویسے کوئی ٹیسٹ کرایا یا آپ کو پتا ہے کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہے یہ؟ ویسے آپ لوگ خود بھی بتا دیا کیجیے جو بھی کالرز ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی ٹیسٹ کرایا, کسی ڈاکٹر سے پوچھا, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. باقی تو ورنہ یہ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کو جواب دے دیں گے. ہاں جی, کچھ آپ ان کو بتانا چاہتی ہیں؟ بالکل بتاؤں گی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ اچھی بات انڈیکیٹ کی کہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ وزن بڑھ کیوں رہا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے سے بڑھ رہا ہو. بعض اوقات آپ کا لائف اسٹائل ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کی نیند خراب ہوتی ہے, یا پھر آپ کی ہارمونل ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے, تب بھی آپ کا وزن بڑھتا ہے. تو پہلے صحیح ریزن جاننا ضروری ہے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. کیونکہ میں اگر پرسنلی اپنا بھی ایک کیا کہتے ہیں ایک ایونٹ شیئر کروں, میرا وزن بھی بڑھ گیا تھا مگر میری میڈیسنز کی وجہ سے, کیونکہ مجھے مائگرین ہوتا تھا تو میں نے میڈیسنز لی, اس کا مجھے ریئیکشن ہوا. اور اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتی میں نے دنیا جہان کی چیزیں کر ڈالی, ایون کہ اپنے یوگا سے اپنا وزن کم نہیں کر پا رہی تھی جب تک کہ میڈیسنز کا ریئیکشن کم نہیں ہوا یا ایسا ختم نہیں ہوا. مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا, اب جا کر مجھے بہت فرق پڑ چکا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کیا وجہ ہے, کیونکہ میرا نہ کھانے کا مسئلہ تھا نہ کچھ اور تھا. تو اگر ان کا صرف کھانے کا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا اپنے کھانے کو کنٹرول کریں گے, اور کم سے کم ہمارا جو کھانے کا پیٹرن ہے وہ 5 حصوں میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صبح سے لے کر رات تک. اور جو رات کا کھانا ہے وہ ہمارا کم سے کم سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ہو چکا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور بس بستر میں گھس جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, یا بہت لیٹ کھاتے ہیں. تو کھانے کی روٹین تھوڑی سی بہتر کرنی ہوگی. اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ ایکسرسائز کہیں نہ کہیں کریں, یا واک کریں, یا کوئی ایکسرسائز کر لیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھیں. اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آفس میں بیٹھے بیٹھے وزن بڑھ جاتا ہے, تو جو بیٹھے بیٹھے کا وزن بڑھ رہا ہے بیٹھنے کی وجہ سے بھی, کیونکہ واک نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا. تو میں ایک بہت سمپل چیز بتاؤں کہ اچھا یہ ہم جو ٹیکنیک آپ نے بتانی ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں, کیونکہ میں کامران سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. کامران آپ بتائیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں میں ویٹ لاس بہت آسان ہے اگر ان کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے, تو پھر ویٹ لاس ان کا ایزی ہے. کیونکہ میں دیکھتی ہوں رمضان میں سب سے زیادہ امپیکٹ آدمیوں پر ہو رہا ہوتا ہے, خواتین پر اس طرح نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے ہمارا میٹابولک ریٹ اس طرح فاسٹ نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے. اگر مرد حضرات ڈائٹ کریں یا تھوڑی سی بھی ایکسرسائز کریں تو وہ فوراً فٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کا بالکل آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مرد کیونکہ اس لیے ہمارے یہاں بیسکلی ہوتا ہے کیا کہ واٹر ڈپلیٹ بھی ہوتا ہے, فیٹ ڈپلیٹ بھی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک کسٹم ہے وہ مرد حضرات زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں ود اینی جو بھی گھر سے باہر آنا, بزنس, جاب, وٹ ایور. عورتوں کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہوتا ورک آؤٹ کرنے کا. اور پرسنلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیسکلی کرنا کیا ہے, یہ سب سے بڑا ہمارا گول ہونا چاہیے, اس کو اچیو کرنا چاہیے. اب یہ چیز ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دبلا ہونا ہے. میرے حساب سے آپ کو اپنی لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتی ہے. لانگ ٹرم میں اگر آپ کو پرولونگ کرنا ہے تو آپ کو اپنی لائف اسٹائل چینج کرنا ہی پڑے گی. اور وہ کیا مراد ہے لائف اسٹائل چینج کرنے سے, کیا مراد ہے اس کی چیدہ چیزیں بتا دیجیے, کیا کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سمپل از دیٹ, اگر آپ شاپنگ کر رہی ہیں تو فار ایگزامپل آپ کو کریونگ ہو رہی ہے کچھ کھانے کی, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ سموسے اور کچوریاں ہی کھاؤ.
آپ کو سویٹ پوٹیٹوز مل جاتی ہیں, آپ کو سویٹ پوٹیٹوز میں وہ والی خوشبو نہیں آ رہی ہوتی نا جو کچوری اور سموسے میں آ رہی ہوتی ہے. 2 چیزیں, یا تو آپ خوشبو دیکھیں, آپ فوڈ کورٹ میں یا یہ کھانے پینے کی جگہ پہ مڑتے ہی اس لیے کیونکہ خوشبو ایسی ادھم آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے. ہاں, اس کی بھی ابھی میرا ایک لاسٹ ویک میں ایک کمرشل شوٹ تھا, تو میں ایک ایسی یونیورسٹی میں تھا جہاں ڈاکٹرز بنتے ہیں, تو میں وہاں کی کیفیٹیریا میں گیا اور میں اتفاقاً ان لوگوں کا آف ہو گیا, تو میں وہاں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا. تو وہاں پہ جو کیفیٹیریا میں جو لڑکیاں لڑکے جو کھا رہے تھے, یقین کریں وہ بند تو ڈاکٹر رہتے, بٹ جب مطلب میں جو ان کو کھاتے ہوئے دکھ رہا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ کیا کیا کھا رہے تھے. آپ وہ سب نہیں کھاتے؟ آبویس نہیں. اچھا نہیں, بالکل اتنا ظلم ویسے اچھا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک ظلم, میرا ایک لائف اسٹائل ہے. میں نے اچھا آپ نے بس ان چیزوں کو رکھ لیا. فیلنگ ڈپرائیوڈ نا, پھر تو الگ بات ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ میرے پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور میں نہیں کھا رہا. لیکن ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کریونگ اتنی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے, ان کے لیے سب سے ایزی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیگ میں کچھ رکھیں تاکہ آپ کو بھوک کم ہو جائے. وہ بیگ میں رکھا رہے گا. نہیں, آپ شاپنگ کرتے ہیں نٹس کھا لیے, شاپنگ کرتے ہیں منچ کر لیا ایپل, تو جب آپ جائیں گے بائی ٹائم آپ اس سموسے کے پاس پہنچیں گے تو آپ سے ایک سے زیادہ نہیں کھایا جائے گا. چلو یہ آپ اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں. اب آپ نے میری پکچر تو دیکھی ہیں. جی جی ہاں, میں نے ان کی پکچر دیکھی ہے. میرا دل کو ابھی بھی چاہتا ہے, تو میں کھاتی اسی طریقے سے ہوں. ٹھیک ہے, اب 3 بچوں کے بعد یہ اب میں اپنے اوپر ظلم نہیں کروں گی کہ میں سموسا نہیں کھانا یا میں روٹی نہیں کھانی. ہاں, یہ کہ پورشن سائز کنٹرول کرنی ہے. اس طرح کی 3 تھیں پہلے یہ, اب دیکھ لیں آپ ان کو, اب یہ 1 ہے. اس طرح کی پہلے یہ 3 ہوتی تھی, ہے نا, یہ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں. لیکن انہوں نے بہت اچھا لوز کیا ہے اور مینٹین بھی کیا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, عامر جیسا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ جی تھینک یو, ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا شو ہے ماشاء اللہ. آج ویٹ گیننگ اور ویٹ کے حساب لیے آپ نے جو موضوع رکھا ہے, ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ پچھلے کالر جو ہمارے ساتھ تھے کہہ رہے ہیں میں نے 20 کلو وزن ویٹ اپنا گین کر لیا. تو اصل بیسکلی ہمارے پاس ایک تو ڈائٹ پرابلم بھی ہے, پھر چلنا پھرنا نہیں ہے. جو لوگ کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, لازمی سے ویٹ گین کریں گے. ہمیں باقاعدگی سے ورزش, صبح واک, کھانے پہ ڈائٹ. آپ کچھ کرتے ہیں؟ جی ہاں, میں اپنا جاب کرتا ہوں. نہیں, آپ جاب کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, اور ڈیلی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی ورزش, اور اس کے بعد جو ہے ڈائٹ کا خاص آتی ہے. اگر خیال رکھے تو پھر اس میں ویٹ انسان گین کر سکتا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ویسے ہمیشہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں, اور انہیں سے ہی میں نے سیکھا ہے کہ 70% ڈائٹ ہے اور 30% ایکسرسائز ہے. اچھا, اب میں نے آپ کو اس وقت انٹرپٹ کر دیا تھا, تو تھوڑا اب آپ خیالی بتائیے کہ بیٹھے بیٹھے, جس کا بھی بیٹھنے کا کام ہے, ہمارا تو خیر 2 گھنٹے کا جو بیٹھنے کا کام ہے اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا جو بیٹھنے کا کام ہے آپ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں, اور آپ کے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ جی میرا تو وزن اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ میں تو بیٹھی رہتی ہوں, میں تو بیٹھا رہتا ہوں, اور پیٹ نکلنے کا بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھا رہتا ہوں. بالکل. اصل میں اس میں ایک گڑبڑ تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کا پوسچر بہت خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. ہاں, جیسے میں بیٹھوں. ہاں, ایسے بیٹھنا ہے. تو اپنی اسپائن اسٹریٹ کر کے بیٹھنے کی عادت ڈالنی ہوگی آپ کو. سب سے پہلے ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں کہ آپ کو اسپائن سیدھی رکھنی ہے, تو کافی پیٹ کور ہوگا اس سے. دوسری چیز یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں آدھے گھنٹے میں, چاہے 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے صحیح, لیکن آپ کھڑے ہو جائیں, 1-2 قدم ہی بڑھا لیں, لیکن سیٹ چھوڑ دیا کریں. کسی بھی ریزن سے, پانی پینے کے لیے اٹھ جائیں, واش روم جانے کے لیے اٹھ جائیں, کوئی فائل اٹھانے کے لیے, کسی سے بات کرنے کے لیے, کچھ بھی کوئی ریزن ڈھونڈ لیں. ہر آدھے گھنٹے میں کوشش کریں کہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جایا کریں. اور اس کے علاوہ جن کے پاس ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ چاہے 10 منٹ نکالیں, 15 منٹ نکالیں ضرور, اور نہیں بھی نکال پاتے تو پھر بھی کیا کر سکتے ہیں کہ ایک میں آپ کو مدرا بتا رہی ہوں, وہ مدرا بتاتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارورڈ بینڈنگ کی ایک جو ایکسرسائز بتاؤں گی جو بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہے آرام سے, آفس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. زیادہ دیر کی ہے تو ہم پہلے کالر لے لیں یا پھر آپ پہلے بتائیں؟ آپ لے لیں کالر. ٹھیک ہے, کالر سے ہم بات کرتے ہیں اور پھر ایکسرسائز. سجاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, السلام. جی السلام علیکم سجاد صاحب, آپ بہاولپور سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تو وہ مجھے کچھ والدہ کا ویٹ کا وزن کم کرنا, وہ بہت زیادہ ان کے ہیوی ہو گئی, تو ان کی پہلے ان کی طبیعت تھوڑی نارمل رہتی تھی, تو ہم نے کچھ حکیموں نے دوائیاں وغیرہ لکھ کے دی, تو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ جس میں موٹا کرنا, یہ کرنا, وہ ہم نے ان کے کہنے پہ کچھ دوائیاں لے لی, تو ایسے میں کہ جیسے باڈی بالکل پھول گئی ہے. اوکے, کچھ دوائیں انہوں نے کھا لی اور جب دیواروں پہ نہیں لکھا ہوتا وزن کم کریں یہ معجون. ہاں, وزن کم کریں, آپ اپنے جسم کو تر و تازہ رکھیں, یہ دیواروں پہ وہ حکیم وغیرہ لکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ والدہ کو کوئی اور میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے؟
नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, थोड़ा शुगर होती थी तो वो भी थोड़ी नॉर्मल हो गई। ठीक है जी, ऑन एयर हम इस पे बात कर लेंगे पहले, लेकिन हम उसी बात को कंप्लीट करेंगे अंजुम के साथ और फिर आप दोनों जवाब दे दीजिएगा। ये सिर्फ दीवारों पे नहीं, सोशल मीडिया पे और न जाने कहाँ कहाँ लिखा होता है और उसका फायदा भी होता है। अक्सर लोग तो वो घोल के पी रहे हैं आजकल और बड़ा वजन कम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, मुझे यहाँ बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को वेट भी कम करना है, मगर वेट कम करना है तो खा के ही करना है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं ये क्या वजह है। ये क्या? हालांकि सबसे सिंपल वे है कि आप अपने कैलोरीज को बर्न करें तो हेल्थियर लाइफ की तरफ होगा और फ्रेश लगेंगे ना। हाँ जी, पहले आप कंप्लीट करें। हाँ जी, तो सबसे पहले तो एक मुद्रा जो मैंने लास्ट अपने शो में बताया था, सिंपल क्या करना है कि आपकी जो ये रिंग फिंगर है आपको इसको बेंड करना है और अपने थंब से इसको होल्ड करना है। अच्छा ठीक है जी। और आपकी बाकी फिंगर स्ट्रेट, ये उल्टा ही हाथ होना चाहिए सीधा? दोनों कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा कोई काम आप कर रहे हो कि आपका एक हाथ बिजी एक हाथ फ्री है तो आपने एक हाथ से करके रखा। ठीक है, तो ये जस्ट इतना सिंपल है कि ऐसे करना है आपको और एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आपको डेली करना है। इससे क्या होगा? वेट लॉस। बाकी तो अब अगर प्रोग्राम में बात करते हुए मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ जी आप बताइए तो आप समझ जाइएगा कि मेरा योगा तो साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्रा है कि जिसको आप टीवी देखते हुए, किसी से बात करते हुए या कोई ऐसा काम जिसमें आपके हाथ बिजी नहीं है, एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। वेट लॉस कैसे होगा? क्योंकि हमारी जो ये फिंगर्स है ये पूरा पाम है, ये हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने आई थिंक और सॉरी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से अगर आपने कभी देखा तो उसमें ये पूरा जो हमारा हाथ है ये हमारी पूरी बॉडी सर से लेकर पैर तक सारा इसमें मौजूद है। तो इसमें इन तमाम उंगलियों के अलग नाम भी होते हैं, सब कुछ होता है। वो डिटेल है जो जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक करेंगे पूरा, बिल्कुल जरूर करेंगे। हाथ को जानने की कोशिश करेंगे इसमें है क्या हमारी बॉडी के हवाले से, ये टॉपिक हम करेंगे। तो इसमें बिल्कुल जो ये वाला ये फिंगर है ये फायर की होती है, तो इसको प्रेस करना होता है, तो ये हमारे अंदर कैलोरीज बर्न करने के लिए हेल्प करती है। ओके, मैंने सही किया? बिल्कुल, बस तो यही रहेगा अब। हाँ। और उसके अलावा क्या करना है कि आप जब बैठे हुए हैं अपने चेयर पर हैं तो पहले मैंने कहा स्पाइन सीधी रहनी चाहिए और फिर जैसे ही मौका मिले थोड़ा सा रिलैक्स करने का तो आप ज्यादा कुछ नहीं तो अपने जो दोनों हाथ हैं अपने नाक की तरफ रख के और अगर आप यहाँ पर इस तरह मुठ्ठियां बना लें ऐसे करके, ये इससे आपको पेट को यानी टमी को प्रेस करने में हेल्प मिलेगी। और सांस इनहेल करके एक्सहेल करके टमी को जितना अंदर खींच सकते हैं खींचेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अच्छा, एक्सहेल करके और फॉरवर्ड बेंड कर देंगे, ठीक है। और ये कितनी देर आपने बेंड रहना? आप कम से कम 30 सेकंड, 20 सेकंड भी कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर मौका मिले और टाइम हो तो उसको 1 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ऑफिस में उस वक्त करें जब और कोई ना हो और आपको पता हो कि किसी ने अचानक एंट्री नहीं दे देनी। अगर अचानक कोई आया तो वो कहेगा ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह आप डायरेक्ट अगर हाथ टमी पे ना भी रखना चाहें तो आप सिंपल हाथ नीचे छोड़ के भी बेंड कर सकते हैं। और ऐसी पोजीशन में अगर आप ऑफिस में रहे ना हाथ बेंड करके सारे बाल गिरा के नीचे, तो उसके बाद आपके ऑफिस में जो र्यूमर्स फैलेंगी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो आपने खुद आ गया। हाँ, तो खुद ध्यान से आपने करना है जब आप कर सकें। बिल्कुल, और अपने पैरों को भी मूवमेंट देती रहनी चाहिए। तो अगर पॉसिबल हो, वही बात की अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशन है जी कि ऑकवर्ड ना लगे और बॉस आके आप यही क्या कर रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेट अपने पैर करने के लिए, क्योंकि हमारे पैर जब इस तरह रहते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, तो आप अपने पैर किसी ऐसी चीज पर या तो ऐसे रखें कि सोल्डर के स्ट्रेट हो जाएं या फिर आप थोड़ी सी ऊंची कर लें अपनी, मतलब पैरों की कोई और एक स्टेप और रख लें जिससे थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए पैर, ये भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो पैरों को मूव कर लें। ये एक्सरसाइज भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है, बैठे बैठे कुछ नहीं काम करते करते पैर चलते रहेंगे। और एक हफ्ते बाद आपके बॉस कहें कि सारा स्टाफ शिकायत कर रहा है कि ये पैर चलाती रहती है बैठे बैठे, कभी ये बाल इनके नीचे और ये खुद नीचे हो जाती है, क्या मसला है आपके साथ? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आपने कॉन्शियसली करना है। ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ, मगर ये तमाम चीजें वो है जो आप कर सकते हैं और कॉन्शियसली कीजिए। हमारे एक कॉलर ने जो सवाल किया था कि उनकी मदर का वेट बढ़ गया क्योंकि दीवारों पे और हर जगह लिखा होता है कि जी आप खूबसूरत हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, फलाना माजून घोल के पी लें, ये दवा खा लें और पता नहीं क्या क्या चीजें। इसके बारे में ये दोनों लोग जरूर, इनके दिल में जो है ना लावा फूट रहा है इस वक्त, शक्ल से मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये बताना चाहेंगे कि ये क्या है और हम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं। लेकिन एक ब्रेक आ गया, अगर आप दफ्तर में हैं तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कीजिए और उसके बाद ब्रेक के बाद बताइए कैसा लग रहा है आपको। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
stars. Brandon McCullum, Shane Watson, Pat Cummins, Usman Khwaja, Shazad Khan, Yasser Shah, Dwayne Bravo, Brad Hall, James Pattinson, Cameron White, Ben Halpernett, Adam Zampa, Adam Zodes, Jackson Bird, John Boker, Colin Monroe, Colin Ingram, Travis Head. Competing hard, not letting it go. Big Bash League 2017 and 18, live on PTV Sport. It's heating up. 6 teams battling out. Top stars giving their best real taste of T20 cricket. Thrill, nerve-tingling, success, despair, agonizing, competitive. Big Bash 2017 and 18, live on PTV Sports. वेलकम बैक। और अगर आपने ऑफिस में ये किया है, ये तो आसान है, तो कर सकते हैं, तो हमें बताइए कि इसका क्या, और बताइएगा, आज ना भी बताएं, आगे आने वाले दिनों में बताएं कि इसका कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस। मैं भी करूंगी अब हाथ छुपा के आप लोगों से, या कभी वैसे पता भी चल जाए तो समझ आ जाएगी। एंड जिस सवाल पर हम ब्रेक पर चले गए थे, उसमें कामरान के तो बहुत इनको तकलीफ हो रही थी, तो इनसे शुरुआत करते हैं, और फिर अरीज आप पूरा इसको समझा दीजिएगा। जी हाँ जी, सवाल ये था कि जी वो कुछ खा के कम वेट करना ना। हाँ, खा के, गोलियां खा के, कोई शरबत पी के, और इस तरह के और जो बहुत सारे मार्केटिंग की भी होती है, और लोग वो चीजें खा लेते हैं, और उसके बाद फिर उनका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इनका तो नहीं हुआ। जो हमारे रिस्पेक्टिव कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा तो ऐसे लगता है कि उनका और जिस्म फूल गया है। देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि बेसिकली हमको 30 मिनट्स वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करना है। अब जैसे ये वालदा की बात करें तो एजिंग भी होती है, तो हम उनको ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट नहीं करा सकते, मगर उनको 5 मिनट से वॉक शुरू कराएं कंफर्ट जोन के अंदर। दूसरी बात ये कि ऑब्वियस न्यूट्रिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी बात ये कि 30 मिनट्स का वर्कआउट डिपेंड नहीं करता आपकी लाइफ के ऊपर। 23 घंटे 30 मिनट कैसे गुजारना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या खाना है, रात की नींद कैसे करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँ कि अगर जो लोग अपने वेट से थोड़ा प्रॉब्लम, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो अपना नमक थोड़ा कम करें और पानी की इंटेक ज़्यादा करें। जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ जैसे इन दोनों को कहा जाता है वैसे 2 वाइट पॉइजन, ये शुगर और नमक, क्योंकि दोनों वाइट हैं और दोनों का इंटेक हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा है, और उससे इम्पैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट बहुत है। जी जी। और दूसरी बात है कि बस इनकी वालदाएं तो स्लोली उनको कोई भी ऐसा वर्कआउट कराएं, जैसे 5 मिनट की वॉक, 3 मिनट की वॉक। इससे ज़्यादा हम क्योंकि एजिंग हो जाती है, तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और गो फॉर द हेल्दी फूड, सिंपल दैट। अच्छा, वैसे ये आपकी वर्कआउट रिजीम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे भी मोहम्मद लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। शुरुआत ऐसे ही करते हैं 3 से 5 मिनट से, लेकिन उसके अलावा आप अब देख लीजिए, जो खवातीन मोहम्मद जिमिंग कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छी जिमिंग करती हैं, बहुत अच्छा एरोबिक्स करने लग जाती हैं, बहुत अच्छी, और जो अपने ही बॉडी वेट की एक्सरसाइज यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊँ, कुछ प्लाटो हिट होती है। अच्छा, प्लाटो बेसिकली होता क्या है? प्लाटो ये होता है कि आप 8 to 12 वीक्स में जाके जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है रिजल्ट, वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको रिजल्ट स्लोली हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में चली जाती है, यानी कि वो रिजल्ट नहीं देती। तो फिर हमें, क्योंकि बॉडी की प्रायोरिटी फैट रिड्यूस करना नहीं है, आपको जो आप खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको जिंदा रखना है। तो हमको बॉडी को फिर ट्रिक करना पड़ता है, यानी कि अपनी डाइट प्लान चेंज करके, अपना वर्कआउट प्लान चेंज करके, समझ रहे हैं आप? तो फिर बॉडी को इस तरह से ट्रिक करना पड़ता है। हर
8 to 12 वीक के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बेचारे 8 से 12 वीक में तो बड़े अच्छे रिजल्ट गेट करते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलते, फिर वो थक जाते हैं, फिर दोबारा अपनी लाइफस्टाइल दोबारा वापस आए। ये बड़ा ठीक है जी, आप इस पे क्या कहेंगी, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। और एक और हमारे पास कोई कॉलर आए थे और उन्होंने कहा कि 5 feet 8 inches उनकी हाइट है, उनका वजन कितना होना चाहिए? 5 feet 8 inches मेल अगर है तो उसका राउंड अबाउट 64 to 70, ठीक है, 64 to 70, 73, 74 उनका वजन है, तो ठीक है। लेकिन बट ये कि अगर फीमेल है तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, फिर ज्यादा हो जाएगा। मेल के लिए था। अच्छा, जो इन्होंने जितनी बात की मैं थोड़ी सी बात कर दूँ, बेसिकली वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो आजकल आते हैं, एक कुछ होते हैं जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, कुछ फैट ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे। या आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा HCG, वो भी दे रहे हैं। कुछ लोग थायराइड का थायरोक्सिन देते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट हो जाएगा कि आपकी फैट बर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें कि आपकी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट नहीं है हार्मोन की, और आप वो ले रहे हैं, जब आप छोड़ेंगे तो क्या होगा उसके बाद? आपका नेगेटिव होगा, आपकी जो एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन आएगा, तो आपकी बॉडी जो वो एक्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी या बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो उसके बहुत बुरे इफेक्ट्स आते हैं। फिर जो फैट ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारे फैट को इंटेस्टाइन में से अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो फैट निकल जाता है स्टूल के थ्रू। आपका फैट जो है इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आपकी नर्व जितनी भी हैं आपकी ब्रेन में, आपके नर्व्स के लिए सारे इसके लिए फैट जरूरी है। तो अगर आपने फैट लेना ही छोड़ दिया तो आपको कितनी नर्व वीकनेस होगी, हाथ पांव टेढ़े होंगे, कांपना शुरू हो जाएंगे। तो वो बहुत कुछ वाइटामिन जो है वो फैट के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अगर आपने फैट को एब्जॉर्ब करना रोक दिया तो आपकी वाइटामिन भी नहीं होंगी, तो आप न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं अपनी। तो इसलिए जितने भी ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स आते हैं ना, अनटिल अनलेस को बहुत इमरजेंसी है या कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम मॉर्बिड ओबीस कहते हैं कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कैरी कर सकते, वो ले सकते हैं ये चीजें। लेकिन अदरवाइज आप अपनी एक्सरसाइज करें, पोर्शन साइज कंट्रोल करें। मेंटल आपकी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि मैंने भी वेट गेन किया, जाहिर है हम लोग बच्चों वाले लोग हैं और आपकी जिंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन यू गेन वेट, और आपके साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ। और जब आप उस लेवल पे होते हैं, जब आपका वेट काफी ज्यादा होता है, तो उस वक्त आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है कि आप चाहते हैं कि ओवरनाइट कुछ हो जाए। और मुझे भी यही था, और मुझे भी ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, लेकिन मुझे कभी घर वालों ने करने नहीं दिया, और बहुत शुक्र है उनका कि नहीं करने दिया, और मैंने भी फिर कभी नहीं किया। लेकिन ये है कि उस वक्त आपकी मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको लगता है कि वो मेरा वजन इतना हो गया, और उस वक्त आप कुछ भी करना चाहते हैं। उसके लिए ना सही प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉपर मिल जाता है जो आपको गाइड कर दे, थोड़ा सा मोटिवेट करे कि आप ये करें, तो आप फिर अपना गोल सेट कर लें कि विद इन अ मंथ मैं अपने आप को इस जगह पे देख। अच्छा, और गोल्स ऐसे होने चाहिए जो रियल हो, ये नहीं कि आप सोचें कि मैं 50 किलो एक महीने में, तो दैट इज नॉट रियल। 3 to 5 kgs हेल्दी वेट लॉस, तो आप और 3 ही अपना गोल रखें, 5 भी ना रखें, तो उसमें फिर आप अचीव भी कर लेंगे, और फिर आपको मजा आने लगेगा। आप ये हमसे ये बात हम आपको कह सकते हैं। अब ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे और इसमें बजाते खुद आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खाना या एक्सरसाइज करना उसकी आदत हो जाती है, फिर आप इंजॉय करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक चीज और करते हैं लोग, वो कहते हैं ना कि ठीक है हम ये चीजें नहीं खा रहे पी रहे, हम ये कोई फूड सप्लीमेंट नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो लोग डाइट को क्या करते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। वो भी बहुत गलत करते हैं, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। वही बात की बैलेंस करना जरूरी है, जितना फैट लेना भी जरूरी है, तो वाइटामिन वगैरह को भी एब्जॉर्ब करना है, आपको गोश्त भी खाना है, आपको दालें भी खानी है, आपको सब्जियां भी खानी है, सब खाना है, लेकिन बैलेंस करके। तो इसलिए जो लोग ये गलती करते हैं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, भूखे रह के अपना वजन कम करते हैं, वो भी तेजी से कम तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली वीकनेस बहुत बाल गिरते हैं, बहुत सारे वेट लॉस भी नहीं होता, बिकॉज आपकी बॉडी जितना आपके पास है आप उतना ही खर्च करेंगे। जब आप फैट और प्रोटीन या आप कुछ भी नहीं ले रहे, तो आपकी जो रिजर्व हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपकी नेचुरली जो आपकी सर्वाइवल स्टेट होती है ना, वो यही होती है कि रिजर्व रुक जाते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है एक्सरसाइज की, आप बेहतर इससे रिलेट कर सकती हैं कि ये सिर्फ आपको बॉडी को ये नहीं है कि दिखने में फिट करता है, आप बहुत सारे अपने रोजमर्रा के कामों में आपको जो चीजें उठानी है, आपको बच्चों को कैरी करना है, आपने और चीजें करनी है, यू फील मोर फिट। और उसमें होता ये है कि आपको खुशी होती है कि मैं अब ये कर सकती हूँ, या मैं ये कर पाती हूँ, या मैं सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाती हूँ, या इस तरह की लगते हैं। तो ये तमाम चीजें भी आपकी जिंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी तो होता है ना। समझते हैं कि सिर्फ लीन हो जाना, स्मार्ट हो जाना, स्लिम हो जाना यही हेल्थ है या यही आपकी स्मार्टनेस है, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक
एनर्जी फील नहीं करते तब तक आप फिट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो थोड़े से फैट होते हैं मगर उनकी एनर्जी कमाल की होती है, उनसे कोई भी काम करवा लें, कितनी देर उनको वॉक करवाएं, कितनी देर उनसे कोई मेहनत का काम कराएं, वो थकते नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन इसके बनस्बत कितना भी फिट बंदा होगा, लेकिन अगर आप उसे कमजोर कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर चलेगा, उसका सांस फूल जाएगा, कोई थोड़ी से वजन की चीज नहीं उठा सकेगा, तो ये कोई सेहत नहीं है। ये आपकी सेहत भी नहीं है और फिर ये आपकी जिंदगी का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है आपके अपने हवाले से। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपकी हेल्थ है। और ये मदर्स के लिए खास तौर पे या हमारी खवातीन के लिए खास तौर पे, क्योंकि अब तो मैं देखती हूँ फिर भी रुझान हो गया है कि थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, जिमिंग वगैरह का, लेकिन वो वहाँ पर जहाँ लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी होती है अदरवाइज नहीं करती हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइज होनी जरूर चाहिए। इसको तो मैं समझता हूँ इसको प्रायोरिटीज पे रखना चाहिए। हमारे यहाँ सारी चीजें नंबर, जैसे बचपन से सुना सेहत बड़ी नेमत है। मैं कोई 500 लोगों से सवाल कर चुका हूँ, आप लास्ट 72 आवर्स से लेके इस लम्हे तक बताइए आपने सेहत के लिए किया क्या? जीरो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो फिर सेहत आपके लिए कहाँ से? स्मार्ट जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं मतलब आप फिर सेहत के लिए कुछ किया नहीं तो 1000 नेमत कैसे हो गई? ये तो 1000 नेमत नहीं हुई, ये तो आप उसको नेमत की वजह एक जहमत बना रहे हैं। तो मैं तो बस ये कहता हूँ पढ़ने के लिए आप अमेरिका चलाते हैं, जाओ, ये अच्छी बात है यार। सेहत के लिए आप अपने पार्क, जिम और अपने गली में वॉक नहीं कर सकते, ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। हम आधे घंटे का करना, और अगर आपको लगता है कि आपको एरोबिक्स पसंद है, उछलना पसंद है, म्यूजिक लगाएं, उछले कूदें, फाइनली डिसाइड लोगों ने खुद करना है। हम 1 घंटे का शो करेंगे, चले जाएंगे सीरियसली। मगर ट्रस्ट करें, आप यकीन करें, जब मैं 90 kg का था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बता नहीं सकता। आई नो, लेकिन 90 लगते नहीं। मगर मैं अब जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो दैट इज फॉर श्योर कि मैं 5 to 10 kg प्लस करूंगा। के लिए आप चौथी दफा मुझे कहते हैं वेट बहुत कम किया, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा 5 किलो वैसे मैंने अभी लास्ट ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने आपको किसी तरह डिस्करेज किया कि अभी अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल सही है। और वो तो मुझे वो याद है ना जहन में। मैंने लीन गेन किया वैसे लास्ट 3 to 2.5 kg मैंने लीन गेन किया अभी। ओके हाँ जी। तो आप कुछ वजन बढ़ा के तो नहीं आएंगी? नहीं। ये तो इस कदर दुबलेपन पे भी इनका तो सवाल खुब गया है मेरे जहन में, जो इन्होंने पहली दफा आके मुझसे पूछा मैं टीवी पे मोटी तो नहीं लग रही। ओफो, मेरा तो दिल चाहा मैं क्या करूं। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप वो बड़ा मासूमियत से मुझसे कहीं और पूरे फेज से गुजरते हैं ना, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। मुझे क्लैरिफाई ना करें, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, इसलिए मैं याद रखे मैं उस सवाल को। बात हो गई है पुरानी, 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई अब तो। उस वक्त इन्होंने मुझसे कहा था, मगर जहन में है मेरे। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, जब आप इतना लूज करते हैं तो वो आपके जहन में कहीं ना कहीं होता रहता है। और वो उस वजह से देखें, यही बात है कि जितना अर्ली आप इसको टैकल कर लेना, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि जो बच्चियाँ कर लेती हैं वो उस फेज में नहीं आती, जो मैंने बेसिकली एक फेज गुजारा था जब मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था अच्छा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, वो चीज़ अब जैसे ओवरकम मैंने थोड़ी कर ली है। लेकिन जो नहीं करते, जो देर तक करते हैं, वो हमेशा ही कॉन्शियस रहते हैं। सही बात। और वो फिर कभी सेटिस्फाई भी नहीं होते। अच्छा, ये क्योंकि वेट की बार बार बात हुई, आपने कहा आप 90 kg थे लेकिन नहीं लगते थे बहरहाल उतने kg, आप जितने 80 kg थी माशाल्लाह। हाँ, और अक्सर लोगों के वेट, हम भी 80 भी थे एक जमाने में। आप जो भी है, बहरहाल ये दोबारा सवाल मुझसे कीजिए, क्या सवाल पूछा गया है? ठीक है। हाँ, डाइट करते हैं जी, और भूख जब ज्यादा लगती है तो फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट इनटेक तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट लें एक, और अपनी मील्स को 5 to 6 मील्स में रखें, ताकि आप बार बार खाएंगे ना तो बॉडी कुछ अल्लाह ने ऐसा बनाया कि फैट तो हिट नहीं करेगी, मतलब फैट प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो वैसे भी फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स का कोई नहीं है। एक चीज जो बार बार डिस्कस हुई, मैं आपसे शुरू करती हूँ और फिर आप लोग भी जवाब दीजिए इसका। हम बहुत बात करते हैं वेट की, और हमारे कॉलर्स भी बात करते हैं 80 किलो वजन है, 85 है, 75 है, जो भी। मगर मैंने देखा है इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। इफ आई एम 65 एंड शी 65 तो हम दोनों डिफरेंट लगेंगे। हो सकता है मैं ज्यादा फिट लगूं या ये ज्यादा फिट लगे। आप नहीं है, मतलब ऐसे ही कह रही हूँ, दिल पे लग गई। नहीं है, ये नहीं है। मगर मैं एक बात कह रही हूँ, चले इफ शी इज 50 एंड आई एम 50,
तो हम दोनों अब ठीक है तो अगर ये भी 50 है मैं भी, तो हम दोनों डिफरेंट लगेंगे. हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. कोई 75 में भी बहुत औसम लगेगा, कोई 75 में बहुत बड़की लगेगा, सेम हाइट के लोग भी. तो ये अपनी अपनी फिजिक होती है. तो डज इट मैटर, मेरा सवाल उसमें ये है कि वेइंग मशीन में क्या वजन आ रहा है ये मैटर करता है, या आप फिट कितने लग रहे हैं ये मैटर करता है? मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूँगी दोनों मैटर करते हैं. क्योंकि बाज़ औक़ात आपका वजन बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से आप मोटे लग रहे होते हैं. ठीक है. वो आपका चर्बी नहीं होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है. ठीक है. तो इसलिए स्लिम लुक आना एक अलग चीज है और वेट मेंटेन होना एक अलग चीज है. तो दोनों बैलेंस होनी चाहिए. दोनों बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है. आप क्या कहते हैं इस पे? मैं कहता हूँ जी वर्क फॉर बॉडी मास. आप अपने बॉडी मास पे वर्क करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 69 kg वेट है राइट नाउ. ठीक है. अब मेरा बॉडी मास ज्यादा है. ठीक है. अब एक बंदा जिसका बॉडी मास कम होगा वो 70 kg का होगा, तो लुक लाइक मेरा बेटर लगेगा बनिस्बत उसके. सिंपल था. और ये आप कैसे अचीव करते हो? वर्कआउट करके आप अच्छी डाइट. वही बात आ गई कि आपका मसल वेट भी होता है और फैट वेट भी होता है. तो जो जिनका मसल वेट ज्यादा होता है ना वो अच्छे लगते हैं, स्केल पे इक्वल वेट आ रहा हो. तो जिनका फैट वेट ज्यादा होता है तो फिर वो फैट, क्योंकि फैट के हमारे सर्टन एरियाज होते हैं जहाँ पे वो फैट स्टोरेज होता ही है और वो एरियाज अच्छे नहीं लगते. ठीक है. जैसे टमी का एरिया है, हम लोग कहते हैं ट्रंकल फैट है, वो बुरा लगेगा. लेकिन अगर किसी का मेल के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, लव हैंडल पे बहुत फैट होता है. वो ट्रंकल फैट जो आ जाता है ना, तो वो मसल फैट, अगर आपका मसल वेट है तो दैट्स गुड इनफ. लेकिन अगर फैट का वेट है तो फिर वो, तो बेसिकली यही है कि अगर आप फिट हैं और आपको तो अपनी बॉडी के बारे में पता होगा ना कि अगर आपकी कोई ऐसी आपकी वॉबली या पल्पी बॉडी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप बेहतर हैं फिर भी. और अगर कहीं से आपका पेट वॉबली है या इस तरह तो फिर आपको काम करने की जरूरत है. वी हैव अ कॉलर फ्रॉम दुबई. अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब. वालेकुम सलाम. क्या मैं ये टिप लेना चाहता हूँ आपसे. मैं ये करता हूँ, कभी कभी डाइट करता हूँ, कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन फिर देखता हूँ खाने का टूट पड़ता हूँ. तो डाइट नहीं होती और मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आता है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, एक जगह खड़ा है. तो आप क्या मतलब लोगों का क्या पेट अंदर बाहर ही होता रहता है? ऐसे ही होता है, एक ही जगह स्टिक हो जाता है. आ गया वो जितना नहीं. मैं 5-6 साल से एक ही जगह में थोड़ी बहुत ही बर्दाश्त करता हूँ. इतनी टाइम नहीं मेरे पास होता. तो कोई ऐसी चीज खाने के लिए या कोई चीज हाँ खाने की इजाद हो जाए ना तो हम सब पाकिस्तान में ऐसे सुपर लगे कि बस. मैं लिखता हूँ सब्ज़पत्ती का या अदरक का कावा, ऐसी चीजें. हाँ वो बहुत अच्छा है. वेरी गुड. बाकी इनसे पूछ लेते हैं हम कि आपने जो कहा कि जी पेट जो है वो क्या हो गया, उसको कोई फर्क नहीं आ रहा उस पे. अंजुम इसका जवाब दे दीजिए. और आपने एक और एक्सरसाइज भी बतानी थी और फिर आप इस पे कमेंट जो करना चाह रही थी वो कर लीजिए. जो एक्सरसाइज मैं बताना चाह रही थी जो बैठे बैठे करने के लिए, वो स्पेशली पेट के लिए, जो इनके लिए भी काम कर रहेगी अगर ये कर लें तो डेफिनेटली इनका जो लाइफस्टाइल होगा वो देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं. इनका सोने की टाइमिंग, इनके खाने पीने का, तभी डिसाइड होगा कि इनका पेट क्यों नहीं हिल रहा अपनी जगह से, वहीं कहीं से क्यों हो गया. तो वो डिपेंड करता है. आप पूरा दिन नहीं हिल रहे हैं तो वो भी नहीं हिल रहा है. हाँ, ज्यादा देर अगर बैठे रहेंगे, बिल्कुल अगर ये ज्यादा देर बैठे रहते हैं, जितने वक्त जाग रहे हैं और बैठे रहते हैं तो डेफिनेटली इनके पेट पर असर पड़ रहा होगा. इनका पेट नहीं कम हो रहा होगा. और फिर कह रहे हैं कि मैं 2-4 हफ्ते डाइट करता हूँ फिर खाने लग जाता हूँ, तो आप मेंटेन तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो तो बैलेंस आउट है ही. तो खैर हम बता रहे थे कि बैठे बैठे क्या करना है कि बैठे बैठे करना है. उससे पहले एक और कॉलर आ गए, उसके बाद आप बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब. वालेकुम सलाम. कैसी है नुसरत आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. मुझे लग रहा है बहुत अरसे बाद आपसे बात हुई. हाँ बहुत अरसे बाद ही हुई है वैसे. अच्छा पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो. और मैं फिटनेस कोई हो ना हो लेकिन फिटनेस का कारोबार बहुत चमक गया, ये बात जरूर है. हाँ नहीं होती भी है, हो भी रही है भाई. नहीं हो रही है, लेकिन देखिए मेरा जो क्वेश्चन है ना कामरान साहब, कामरान का उनका नाम कामरान है. जी कामरान. कामरान भाई मेरा सवाल ये कि देखिए ठीक है फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन असल में हो ये क्या है कि मैं जो चीज देख रहा हूँ कि लोग जो है ना फिटनेस के बारे में ओवर कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो गए. आपको होता ही है कि या तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे होते या कर रहे होते हैं तो फिर आप वो यानी खाना पीना बेइंतहा छोड़ देते हैं और फिर फिटनेस फ्रीक कहते हैं उनको, फ्रीक हो जाते हैं वो. बिल्कुल वो उसमें ये होता है कि फिर वो आपको ये देख रहे होते हैं मैं कितने स्टेप चल गया, फिर वो अपने मोबाइल पे सारी रीडिंग ले रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान वो काफी वीक भी हो जाते हैं और फिर वो तकलीफ में भी आ जाते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है
कि हमें जो है वो बैलेंस किस तरह लेके चलना चाहिए, व्हाट वी शुड डू। अगर जैसे आई एम अ वर्किंग मैन, मतलब मुझे इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई चीज करूँ, आप करते क्या? आप क्या करते हैं आया साहब, आज हमें भी पता चल जाए। मेरा तो बेसिकली कार डीलिंग का बिजनेस है, तो मेरा मोस्टली टाइम मतलब बैठने में गुजरता है, और फिर वो इतना बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ऑलमोस्ट मैं गाड़ी में ही होता हूँ ज्यादातर। तो मुझे ये एक तो ये पूछना, दूसरी बात है अगर मैं जैसे मैं ड्राइव करके आता हूँ, बहुत लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो एक बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो वो किससे ओवरकम कर सकता हूँ मैं? अच्छा ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन पहले हम अंजुम से जो पूछ रहे थे, और अंजुम हमें एक्सरसाइज बता रही थी, खासतौर पे जुबैर साहब आपके लिए, जिन्होंने दुबई से कॉल किया और कहा कि बस बड़ा मुश्किल था। खैर बताएं। अच्छा जी, करना क्या है कि आप अपने चेयर पे बैठे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ट्विस्ट करना है, यानी कि इनहेल किया, एक्सहेल करके टमी अंदर खींची जितना खींच सकते हैं, उसके बाद अपनी चेयर की बैक साइड को पकड़ के आपने ट्विस्ट कर लिया, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें, अपनी नेक को भी ट्विस्ट करें और अपनी पूरी बॉडी को, और इसी तरह 20 सेकंड या 30 सेकंड तक होल्ड करके वापस अपनी पोजीशन पे सामने, और उसके बाद ऑपोजिट साइड पे भी इसी तरह हम ट्विस्ट करेंगे। तो ये अगर 4 से 5 रिपीट हो जाए साइड ईच साइड, तो भी बहुत अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है। आप कभी भी घर वालों के साथ बातें करते करते ट्विस्ट हो जाएं, उनको बता दें, है ना, और फिर इधर ट्विस्ट हो जाएं, और वो बातों जो बात अच्छी लगी घर वालों की ट्विस्ट हो जाए, ये हो सकता है, फायदा हो जाएंगे। मिसेस आबिद की कॉल है, तो याया साहब ने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब आपने देना है, और आप भी कुछ कहना चाहती थी, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि मुझे पीसीओ है। ओके जी। और मैं बहुत ज्यादा डाइट भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा वेट कम नहीं होता। ठीक है, वेट कितना है? कितना वेट है आपका? मेरा वेट 82 है और एज मेरी 32 है। और हाइट? हाइट 5'6" है, 5 फुट 6 इंच। ठीक है, हाँ अभी बिल्कुल आपको बता देते हैं। अस्मा की कॉल है, और आप लोगों ने जो सवाल आप लोगों से पूछे गए वो याद रखें। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहबा से एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं मेरी एज है 41 ईयर। ओके जी, मेरा पेट जो है वो बहुत ज्यादा है, ये प्रेगनेंसी के बाद मेरा पेट जो है वो सही नहीं हुआ। मेरे 3 बच्चे हैं, सीजर हुआ है मेरा तीनों बच्चों की तरफा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पेट मेरा किस तरह कम होगा? बहुत कोशिश करती हूँ, डाइट भी मेरी नॉर्मल है, मैं बहुत। ओवरऑल वेट कितना है आपका, अगर बता सकें तो? तकरीबन 74 kg है मेरा। और हाइट कितनी है? हाइट 4'5", कितनी है? ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपको ऑन एयर बताएंगे, लेकिन सब अपने अपने, पहले याया साहब ने सवाल किया आपसे। हाँ जी, मेरे भाई ने जो सवाल किया कि मेरे पास टाइम नहीं होता, देखें ये सारे एक्सक्यूजेज हैं मेरे अकॉर्डिंगली। आपके पास बिजनेस करने के लिए 10 घंटे का टाइम है, 9 घंटे का टाइम है, अपनी जात को क्वालिटी टाइम आधा घंटा क्यों नहीं दे सकते? मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज चेंज करो अपने भाई। अगर आप अपनी लाइफ को, व्हाट आई बिलीव कि आप हेल्दी होगे, आपकी फैमिली, अगर आप 12 घंटे काम कर सकते हो तो आपकी फैमिली जो है 24 घंटे आराम करेगी। एक मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा इस तरह से, अगर आप 6 घंटे काम करने की ताकत रखते हैं तो आपकी फैमिली 12 घंटे 14 घंटे आराम करेगी। आप समझ मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज करें कि आप अगर कार डीलर हैं तो 30 मिनट्स देना बिग डील नहीं है 24 आवर्स में। और बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपको अपनी रूटीन मेंटेन करने की करना ही पड़ेगा। ये होता है, लेकिन वंस यू डू इट ना, यू स्टार्ट डूइंग इट, तो उसके बाद फिर ये आपकी एक रूटीन बन जाती है। फिर जिस दिन आप मिस करते हैं आपको बहुत फील होता है। मैं थोड़ी सी इनसे एक बात करूंगा भाई से कि मैं, मेरी सुबह 5 बजे होती है, मैं एक सेलिब्रिटी उनको ट्रेन करता हूँ, उसके बाद मैं 2-3 मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करता हूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस है, फिर मैं बड़ी अच्छी सुबह 12 to 10 मेरा एक बिजनेस है, मैं उस बिजनेस को लुक आफ्टर करता हूँ। देन मैं पर्सनल वर्कआउट अपना करता हूँ। और आप यकीन कीजिए मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं होती कि मैं बहुत थक गया हूँ। रीजन कि मैं अपनी प्योरिटी को, मैंने कहा यही मेरी लाइफ है। सुबह उठना भी जो है ना, इसमें एक यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी जितनी भी बनती, बिगड़ती, टूटती है, वो सिर्फ रात की नींद ना लेने की वजह से ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टाइम कम है, तो जल्दी से उनके जवाब दे दीजिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाला जो आया था ना, प्रॉब्लम ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पूरा वर्कअप कराना पड़ता है कि आपका सीरम इंसुलिन कितना है, आपको बाकी हार्मोन भी सारे चेक करने पड़ते हैं। अगर वो सब ठीक आ रहा है और फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा ना,
तो ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है. लोग क्या करते हैं, हम डाइट कर रहे हैं, डाइट का गूगल खोला, डाइट निकाल ली. डाइट आपको क्या चाहिए, बिकॉज जब जिनका सीरम इंसुलिन या पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है, नॉर्मली उनको फ्रूट इंटेक भी ज्यादा नहीं कहते, उनके व्हाइट कार्ब्स बिल्कुल सारी जितनी भी रिफाइंड चीजें वो हटानी पड़ती हैं. शुरू में इनिशियली हटाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराते हैं. और उनको हाई प्रोटीन डाइट भी देनी पड़ती है, लेकिन वाइटामिन भी साथ जरूरी होते हैं. तो क्या चीज इनकी मिसिंग है डाइट में से, वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? अब कहने को तो मैं कहूँ कि आप डाइट कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन में क्या क्या खाया वो एग्जैक्ट नहीं पता, वाटर इनटेक कैसे ये नहीं पता, सुबह उठ के नाश्ता कितने बजे करते हैं ये नहीं पता. तो वो पूरा प्रॉपर वर्कअप करना पड़ेगा. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट मील होती है दही. मैंने बताया जैसे हर जगह मैं कहती हूँ दही जरूर खाएं, स्पेशली जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वो दही जरूर लिया करें. तो ये कि अपनी थोड़ा सा नाश्ता जल्दी करें, प्रॉपर नाश्ता करें, दोपहर का लंच थोड़ा लाइट करें, और रात का डिनर अर्ली करके हाई प्रोटीन करके सो जाएं. बीच में मंचिंग कम करें. और एक और अस्मा का सवाल था, ने भी ये कहा था कि उनका सिजेरियन के बाद जो है ना पेट, एक्चुअली अब वैसे हाइट उनकी क्योंकि 4'5" है, और हाइट उन्होंने मुझे 4'5" बिल्कुल बहुत कम हाइट बता रही है, या तो गलत बता रही है. 5'4" होगी. 5'4" अगर 5'4" भी है तो 70s में बहुत ज्यादा वेट एक्सट्रीम है. और जो सी के सेक्शन के बाद स्टमक निकल आते हैं, कहते हैं जो बाहर निकल आया पेट, उसमें इनिशियली आपने केयर कितनी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर इनटेक आपने शुरू में कितना लिया पोस्ट सिजेरियन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर स्किन आपकी लूज हो गई ना, फिर फैट नहीं है, स्किन लूज हुई है, तो वो तो फिर मुश्किल से अंदर जाता है. उसके लिए तो आपको प्रॉपर स्किन टाइटनिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म कराना पड़ता है. राइट. वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो गया. एक लाइन आपने बोलनी है तो आपके पास आपको गुंजाइश है. उसके लिए, सेहत के लिए जी, पानी का बार बार जिक्र होता है, गर्म पानी पिए. गर्म पानी पिए. थैंक यू सो मच. आपने बड़ी अच्छी बात कर दी. और बाकी चाइना में, जापान में तो ये बड़ा कस्टम है कि वो लोग गर्म पानी पीते हैं, एक्चुअली गर्म पानी. और आप देखिए कि वो बिल्कुल फ्लैट स्टमक उनका होता है, पेट निकले हुए लोग नहीं है, स्किन भी अच्छी होती है. विद दैट एक ब्रेक आ गया. आप गर्म पानी पी के वापस आएं और फिर हम अपना दूसरा सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड. इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. TTV न्यूज़ में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार. शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत. साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश. इस्तगासा के मजीद 3 गवाह बयानात कलमबंद करा रहे हैं. वकील सफाई ख्वाजा मोहम्मद हारिस की गवाहों पर जिरा जारी. एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं. तुर्कमानिस्तान के वजीर खारिजा राशिद मीरदौफ की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात. दोनों मुल्कों का तवानाई, शाहराहों और रेल राब्तों के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक. कंट्रोल लाइन के कोटली सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग. 4 जवान शहीद. पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई. 3 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी. ISPR. वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की LOC पर भारतीय इजहारियत की शदीद मजम्मत. भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी. बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज. अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को न ठहराए. अफगान जंग पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं लड़ी जा सकती. ट्रंप इंतजामिया. धमकियों, इमदाद की बंदिश और नोटिस देने के बजाय मुज़ाकरात की मेज पर आए.
वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। एहतजाज करने वाले अपने अपने सूबों में आवाम की खिदमत करें। धरनों और एहतजाजी जलसे जुलूसों के जरिए कौम का वक्त ज़ाया न करें। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली वजीर आजम के दौरे भारत के खिलाफ नई दिल्ली और कारगिल में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन के इसराइली वजीर आजम के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में नारे। सदर ट्रंप के नाजेबा अल्फाज पर जनूबी अफ्रीका, घाना, हेटी, बोत्सवाना, सेनेगल और नाइजीरिया ने अमरीकी सफीरों को तलब कर लिया। अफ्रीकी ममालिक से मुतालिक ट्रंप के तौहीन आमेज अल्फाज पर शदीद एहतजाज। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में तरमीम से मुतालिक अमरीकी कोशिशों की हिमायत नहीं करेंगे। 2015 में तय पाने वाले मुआहदे को बरकरार रखने की कोशिशें जारी रहेंगी। रूसी वजीर खारिजा सरगेई लारोव। इराक में 2 खुदकुश बमबारों ने वस्ती बगदाद में खुद को धमाकों से उड़ा दिया। 38 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा एक रोजा मैच मिल्टन में जारी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 263 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज और कप्तान सरफराज अहमद की निस्फ सेंचुरियां। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने आयरलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। शाहिद आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 15 रन के एवज 6 आयरिश खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। आयरिश टीम 97 रन तक महदूद। पाकिस्तान ने मुकर्रर हदफ सिर्फ 8.5 गेंदों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की टूर्नामेंट में पहली कामयाबी। उस्मान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने श्रीलंका को 159 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताते चलें कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समात एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। मरियम नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ भट्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा अब की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी सलमा, एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब की तीनों रेफरेंसेस की समात इस वक्त जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत में नैब की तीनों रेफरेंसेस की समात कर रहे हैं। इस वक्त आज की समात में इस्तगासा के 3 गवाहों को जो तलब किया गया है, जिनमें से एक गवाह जो कि नासिर जुनेजो हैं, जो कि फ्लैगशिप रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह हैं, उनका बयान कलमबंद कर लिया गया है और इस पर वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने जिरा भी मुकम्मल कर ली है। अपनी जिरा के दौरान वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने इस्तगासा के गवाह से इस्तफसार करते हुए ये पूछा कि क्या आप सिर्फ फ्लैगशिप इंक्वायरी में शामिल थे या कि आप उसके अलावा भी आप किसी और इंक्वायरी में भी उस दिन आपसे रिकॉर्ड तलब किया गया या आपसे कोई सवाल जवाब किए गए? तो गवाह ने यही कहा कि उस वक्त जो है मेरे सिर्फ फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया था। इसके अलावा मैं किसी और कार्रवाई में जो उस मुतालिक मेरे से कोई चीज जो है वो नहीं पूछी गई। इसके अलावा इस्तगासा के जो दूसरे गवाह हैं उमर दराज, उनका बयान जो है वो भी कलमबंद हो चुका है और इस वक्त जो है एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस्तगासा के जो दूसरे गवाह हैं उमर दराज, उन पर जिरा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा रिजवान के मुतवक्के मजीद अदालती कार्रवाई क्या होगी और कितनी देर में मुतवक्के है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर आ जाएंगे? जी सलमा, ये अभी कहना कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ किस वक्त तक बाहर आएंगे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की कार्रवाई में सिर्फ 3 गवाहान को एहतसाब अदालत ने बयान कलमबंद करवाने के लिए बुलाया गया है। जिसका हम देख रहे हैं 9 बजे समाअत शुरू हुई है तो 10 बजे तक एक गवाह का बयान भी मुकम्मल हो चुका है और इस पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त जो है वो दूसरे गवाह पर जिरा जारी है, उसका भी बयान मुकम्मल हो चुका है। जब इस पर दूसरे गवाह पर जिरा मुकम्मल हो जाएगी तो वकील सफाई ख्वाजा हारिस तीसरे जो गवाह हैं उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा और उसके बाद उस तीसरे गवाह पर जिरा की जाएगी। उसके बाद
साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ मरियम नवाज भी मौजूद हैं, कैप्टन सफ्दर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो एहतसाब अदालत से बाहर आ जाएंगे। गुज़श्ता समातों में हम ये देखते हैं कि राउंड अबाउट 12 AM तक वो जो है बाहर आ जाते हैं। आज भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस आ जाए। अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी एक बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आप देख रहे हैं? जी सलमा, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हर समाज में मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है, जिनमें वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज जशी, मरियम औरंगजेब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दानियाल अजीज और भी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत हैं वो अपने कायद साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत के अहाता के अंदर भी और इसके अहाता के बाहर भी दोनों जगह पर जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे जो फोर्सेस के अहलकार हैं वो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने इस्तगासा के गवाह तलब कर चुकी है अदालत और मजीद कितने रहते हैं? जी सर, मैं आपको बताते चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पर 3 रेफरेंसेज हैं नैब की जानिब से, और तीनों जबकि जो कैप्टन सफ्दर हैं और मरियम नवाज हैं उन पर 2 जो रेफरेंसेज हैं वो दोनों में जो है उन पर नैब की रेफरेंसेज हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 12 मरतबा जो हैं एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं, मरियम नवाज 14, जबकि कैप्टन सफ्दर जो हैं वो 15 मरतबा जो हैं वो एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस है उसकी 20 समातें हो चुकी हैं, और इसके अलावा एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस उसकी 19 समातें हो चुकी हैं, जबकि जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस है उसकी 23 समातें हो चुकी हैं। अच्छा रिजवान, जैसे कि आपने बताया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, एहतसाब अदालत के आसपास आप ट्रैफिक का बहाव किस तरह से देखते हैं? जी देखिए सलमा, जब साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में आते हैं तो जो एहतसाब अदालत क्योंकि एक सर्विस रोड पर वाक़ है तो ये सर्विस रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ट्रैफिक का बहाव क्योंकि इस साइड पर शहरी आबादी उस हिसाब से नहीं है, ना ही यहाँ पर इतनी कोई पॉपुलर इमारत हैं कि जिससे जो है वो आम शहरी जो है वो यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी एहतसाब अदालत से कुछ जो है वो किलोमीटर जो है वो कुछ फीट जो है उसको जो है वो पूरी शहरियों के लिए वो ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो उसका जो है वो दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आरिफ। अगर हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और एहतसाब अदालत से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक और हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से समाअत हुई और ये समाअत इतवार तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस केस की समाअत की। एडिशनल IG पंजाब अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने उनसे इस हवाले से सवाल किए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने केस की समाअत की। ज़ैनब कत्ल केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और ये अज खुद समाअत थी जो मियां साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की और इतवार तक इसकी समाअत केस की मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल IG पंजाब आज अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उनसे इस हवाले से मालूमात ली। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल केस की आज खुद समाअत हुई जो कि इतवार तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मियां साकिब निसार की सरबराही में केस की समाअत हुई और एडिशनल IG पंजाब आज अदालत में इस हवाले से पेश हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इजाज हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी इजाज, आज के इस केस की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये जी आज कुछ नोटिस था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने 2-3 रोज पहले लिया था जब उन्हें मालूम हुआ था ज़ैनब कत्ल केस का। उससे पहले क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले का नोटिस ले चुकी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले में मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है और ये कहा है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस ले चुकी है और यहाँ पर समाअत हो रही है, लिहाजा हाई कोर्ट को अब ये इख्तियार नहीं है कि वो इस मामले की समाअत करे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी कल समाअत होनी थी। अब इस मामले की समाअत जो है लाहौर रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है वहाँ होगी इतवार को, और जो लाहौर फोरेंसिक लैब है उनके सरबराह को अदालत ने तलब किया है उसी रोज
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے پولیس نے کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرے, اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے. اور عدالت نے یہ کہا ہے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہ اگر زینب کا قاتل نہیں پکڑا جاتا تو یہ پولیس اور حکومت کی ناکامی ہوگی, تو لہٰذا اس کو فوری طور پر پکڑا جائے. ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا ہے کہ بدقسمتی سے پارلیمنٹ نے اپنا قانون سازی کے حوالے سے کردار ادا نہیں کیا, چاہے وہ طیبہ تشدد کیس ہو یا زینب کا قتل کا معاملہ ہو. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ چونکہ سپریم ادارہ ہے اسی نے اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے. عدالت جب تک پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی نہیں کرتی, عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتی. یہ بھی اعتزاز احسن جو عدالت میں اس وقت موجود تھے, ان سے عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی جو ہے انہیں دعوت بھی دی تھی چیف جسٹس نے, اور انہوں نے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا. اس قوانین کے حوالے سے یعنی قانون سازی کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے وہ اب ان کے پاس جو بھی تجاویز ہیں عدالت نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ آئیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ دوسرے جو پارلیمنٹرین ہیں جن کے پاس تجاویز موجود ہیں قانون سازی کے حوالے سے, وہ بھی جو ہے وہ ملاقات کریں. اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اداروں کے درمیان مکالمہ اور مفاہمت بہت ضروری ہے, ادارے ایک دوسرے سے بیگانے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ اپنا اس معاملے میں کردار ادا نہیں کرتی, سپریم کورٹ یا دوسری عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت عدلیہ کے حوالے سے دو طرح کے تصورات ہیں. عدلیہ نہیں چاہتی, یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی دوسرے کے جو اختیارات ہیں ان پر وہ لیں اور پھر اس کے بعد کارروائی کریں. اب اس معاملے کی کارروائی جو ہے وہ اتوار کو لاہور رجسٹری میں ہوگی, اور وہاں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا. ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ان سے ٹائم فریم لینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیریل کلر ہے جو کہ زینب کا قاتل ہے, لہذا اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی کہ کب تک اس کو گرفتار کر دیا جائے گا. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ پہلا معاملہ نہیں, جیسے کہ جو رپورٹ عدالت میں پولیس کی طرف سے پیش کی گئی ہے کہ 2015 میں ایک واقعہ آیا, 2016 میں 2 واقعات ہوئے, اسی طرح 2017 اس میں 4 معاملات ہو چکے ہیں, اس واقعات ہو چکے ہیں قصور میں. تو عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک جگہ پر بار بار اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس کی جو قاتل ہے یا جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا. جس پر ایڈیشنل آئی جی پولیس نے بتایا ہے کہ 100 سے 150 جو ہے سادہ لباس میں وہاں پر پولیس اہلکار موجود ہے جو سرویلنس کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ابھی تک کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بندے کو, اس مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا جو سوشل میڈیا میں 2-3 لوگوں کے حوالے سے ان کی تصاویر چلی تھی کہ شاید یہ ملزم ہیں, ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا جو کہ نیگیٹو ہے, تو ان کو اس کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی این اے جس شخص سے میچ کرے گا, کیونکہ ہم یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, جس شخص سے میچ کرے گا اسی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اعجاز حسین. ناظرین, اعجاز حسین ہمارے نمائندے ہمیں سپریم کورٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں زینب قتل کیس کی از خود نوٹس کی سماعت ہوئی اور اگلی سماعت اتوار تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ قاتل اگر نہیں پکڑا جاتا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی. سپریم کورٹ میں زینب قتل کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے TTV نیوز کے ساتھ رہیے. اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت, ایک قوم, ایک سوچ, ایک فکر, ایک آزاد ریاست. It's heating up. 6 teams battling out.
top stars giving their best real taste of T20 cricket. Thrill, nerve-tingling, success, despair, agonizing, competitive. Big Bash 2000. नाज़रीन, अफ़गान सदर इस्लामाबाद में इस वक्त पैगाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मंसूर आजम काजी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ईवान सदर इस्लामाबाद में। नाजरीन, आज 16 जनवरी 2018 का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक सुनहरी दिन है। अनडाउटेडली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और नेशनल नैरेटिव की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव क्या है। तमाम मदारिस के वफाक का मुश्तरका फतवा एलानिया जारी हुआ है जिसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी और खुदकुश हमले के खिलाफ फतवा दिया है। यूज ऑफ आर्म्स अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ फतवा दिया है और शरीयत के निफाज के लिए किसी भी ताकत के इस्तेमाल पर फतवा दिया है। इस पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ इस ईवान सदर में मौजूद हैं मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे आप आज के मौके पर जब आज ये बयानिया जारी हो रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव जा रहा है पूरी दुनिया के लिए? ये दिन मैं समझता हूँ कि इस हैसियत से बहुत ही ज़्यादा मुबारक दिन है और तारीखी दिन है और तारीख साज दिन है। और मैं समझता हूँ कि ये करारदाद मकासिद, 22 निकात और सन 73 के दस्तूर की जैसी अजीमुशान दस्तावेजात के बाद सबसे अजीम दस्तावेज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमाए पाकिस्तान के जरिए से तैयार करवाई है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा बरसरे अमल रहे हैं और महीनों और हफ्तों तक इस फतवे पर गौर व फिक्र होकर और उसके एक एक लफ्ज पर गौर करके ये बयानिया और ये फतवा तैयार किया गया है। हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ये पैगाम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करने के लिए मुअस्सिर साबित हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ थे मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब। अब हम लोग तकलीफ देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो भी हमारे साथ इस वक्त ईवान सदर में मौजूद हैं ताकि हम उनके तासुरात का इज़हार ले सकें। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले पर क्या कहेंगे आज के मौके पर जी, एक बहुत कामयाबी है रियासत पाकिस्तान की, आप क्या कहेंगे जी? दरअसल एक अच्छा और मौसर इवेंट है और पाकिस्तान के उलमा, मजहबी तबका, तमाम मकातब फिक्र, उनके मदारिस, उनकी तंजीमें मुसलसल रियासत के साथ हैं, आइन के साथ हैं, आइन और कानून के दायरे में जद्दोजहद का बरमला इजहार करते हैं। और कम अज़ कम मेरे नोटिस में 2010 से लेकर आज तक 3 ऐसे दस्तावेजात हैं जिस पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालात के तहत मुत्तफ़क़ा एलामिये दिए गए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने 25,000 उलमाए कराम को पेशावर में, 10,000 उलमाए कराम को कोयटा में और फिर उस बुनियाद पर पंजाब और सिंध में सेमिनार किए। तमाम मकातब फिक्र ने लाहौर में मुत्तफ़क़ा एलामिये के साथ इन तमाम चीज़ों से इनकार किया और बरात का ऐलान किया जो आइन से मावरा की जा रही हैं या उसके मुतालबे किए जा रहे हैं। फिर जो हमारे वफाकुल मदारिस अल अरबिया से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के उलमाए कराम इकट्ठे हुए लाहौर में और उन्होंने एक मुत्तफ़क़ा एलामिया जारी किया और पाकिस्तान में मुसल्लह जंग को गैर शरई करार दिया था। आज भी हम उस पर कायम हैं और हमें मुल्क में यकजहती चाहिए, यकसूई चाहिए और हम मिलकर रियासत और अफराद और जमातें
मिलकर ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती हैं। जो एतमाद हम रियासत पे कर रहे हैं, जो एतमाद हम रियासती इदारों पर कर रहे हैं, हम रियासत और रियासती इदारों से ये तवक्को रखते हैं कि वो मजहबी तंजीमों और मदारस पर भी एतमाद करें और उलमाए किराम के खिलाफ जो इक़दामात हैं फोर्स शेड्यूल की सूरत में, मदारस पर छापों की सूरत में और उलमाए किराम को मजहबी तबक़ों को मशकूक नज़र से देखने के लिए मेरे ख्याल में ये रवैये अब तर्क हो जाने चाहिए और एक बाहमी एतमाद का माहौल पैदा करना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मौलाना फजलुर रहमान की बात सुनी और उनका भी यही कहना था कि ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की बका है इस नैरेटिव में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना रियाज नजफी साहब। हम उनसे हाफिज रियाज मोहम्मद रियाज हुसैन नजफी साहब, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका आज पैगाम पाकिस्तान के मौके पर क्या मौक़िफ़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत के बाद इस्लाम का काम शुरू किया तो पहले हुक्म हुआ क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। जो आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता वो एक नई उम्मत का फ़र्द बन जाता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत में कहा गया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम लोग आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे थे। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान इख़वानियत पैदा की, उख़ुवत पैदा की, भाईचारा पैदा किया। आप तबाही के किनारे पहुँच चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को इज़्ज़त दी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हिज्जतुल विदा दिया है, यानी अरफात में खुतबा दिया, उसमें इरशाद फरमाया है कि देखो पता है आज कौन सा दिन है? आज कुर्बानी का दिन है, 10 ज़िलहज है। महीना कौन सा है? ज़िलहज का। शहर कौन सा है? मक्का। ये दिन भी मोहतरम और ये महीना भी मोहतरम और ये शहर भी मोहतरम। जिस तरह ये मोहतरम है, इसी तरह हर इंसान मुस्लिम की जान मोहतरम है, उसका उसी तरह ख्याल करना। ऐसा ना हो कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं फिर काफिर बन जाओ और एक दूसरे की गर्दन काटना शुरू कर दो। आज हमारा हाल यही है कि नाम इस्लाम का है लेकिन हकीकतन इस्लाम नजर नहीं आता। खुदा भला करे, रियासत पाकिस्तान का पहले ज़रब अज़ब शुरू कराया गया, फिर रद्दुल फसाद शुरू कराया गया। उसका नतीजा ये, ज़रूरत ये इसको इस हद तक ले जाया जाए कि एक आदमी भी दहशतगर्द इस पाकिस्तान में न हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आपने सुना हमारे उलमा कराम का जो मौक़िफ़ है आज के दिन को लेकर, इसी पर आज यहाँ पर ऐवान सदर में ये तकरीब हो रही है। हम आपको वहीं लिए चलते हैं। ये ले जाना है ऊपर, बड़ा वो बन सकता है।
खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। आवाम की राय हुकूमत के इक़्तिदार की बुनियाद होगी। ये राय आम इंतखाबात के जरिए जाहिर की जाएगी जो मुसावी राय दहिंदगी की बुनियाद पर होंगे और जो खुफिया वोट या इसके मुसावी किसी दूसरे आजादाना तरीके राय दहिंदगी के मुताबिक अमल में आएंगे। नबी आखिर रसूल मुअज़्ज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज़। जमहूरी हुकूमत पुरअज़्म है कि खत्म नबूवत के बुनियादी अकीदे की हुर्मत पर कभी आँच नहीं आने दी जाएगी। खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, लिहाजा कौम इस हसास मामले को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने और अवाम के जज्बात को भड़काने वाले अनासर से आगाह रहे और उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाए। हुर्मत रसूल का भी यही तकाज़ा है। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। हो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। कायद आज़म ने फरमाया, इस्लामी हुकूमत के तसव्वुर का ये इम्तियाज पेश नजर रहना चाहिए कि इसमें इताअत और वफादारी का मर्जा खुदा की जात है, जिसकी तामील का अमली जरिया कुरान मजीद के अहकाम और उसूल हैं। इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले,
और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी भरी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। I solemnly swear that I believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and that I am not the follower of anyone who claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and that I do not recognize such a claimant to be a prophet or a religious reformer, nor do I belong to the Qadiani group or the Lahori group, or call myself an Ahmadi. हर शख्स को अपनी राय रखने और उस राय के इजहार का हक हासिल है, और उस हक में ये अम्र भी शामिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी राय कायम करे और जिस जरिए से चाहे मुल्की सरहदों का ख्याल किए बगैर इल्म और ख्यालात की तलाश करे, उन्हें हासिल करे और उनकी तबलीग करे। कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोरेज। इसके अलावा कोई शराइत? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है, सोचें ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। पुरम पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के हवाले से, और डॉक्टर इमरान की इस बात से तो मेरा, आप कह लीजिए, वो जो जुमला है ना, बिल्कुल सही है कि दिमाग घूम गया है कि हर 4 बच्चे, 4 लड़के जिनके साथ ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है आज के दौर में, और उसके बाद एक लड़की, और ये तमाम केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये तमाम केसेस उस वक्त मंजर आम पर आते हैं जब खुदा न खास्ता हम एक जान खो बैठते हैं, कोई एक बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। और अमूमन लड़कियों के केसेस में ये हमने देखा है, लड़कों की तो हम बात ही नहीं करते, मगर दिस इज द रियल फेस ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इन जराइम को होने दे रहे हैं। आपने जिस बात से डिसकंटिन्यू किया था, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम जो यहाँ पे बात कह रहे हैं ना, मैं अभी भी हम ट्रैक पे नहीं है। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को पत्नी बताते हुए शर्मा रहे हैं, बच्चा जो है वो फितरती तौर पर इतना सेंसिटिव और प्योर होता है कि वो सारी चीजें पहचानता है। आप एक बच्चे को फटा हुआ दूध नहीं पिला सकते, राइट, हाँ, एक घूंट एक्स्ट्रा नहीं पिला सकते। आपने खुद अपने घर में नोट किया, बच्चा किसी की गोद में खुश होता है, किसी गोद में फौरन रोना शुरू कर देता है। ये बच्चे के 5 हवास हमसे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वो प्योर होते हैं, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन मंतिक नहीं चल रही होती। बच्चे के साथ जो भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट हाथ भी लगता है, या बात होती है, या फोर्स किया जाता है, दबाया जाता है, वो फौरन रिएक्ट करता है। बच्चा उस शख्स की मौजूदगी के अंदर इजहार करता है। वो माँ बाप कैसे नाबीना अंधे हो जाते हैं जो उस शख्स की मौजूदगी में बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं देख पाते। एक खेलता हुआ बच्चा अचानक सहम जाता है, एक खेलता हुआ बच्चा बात करना छोड़ देता है, आप जबरदस्ती उसकी तरफ भेज देते हैं, अंकल को सलाम करो, वो हाथ हटा रहा है, और आप उसको फोर्स कर रहे हैं। आप क्यों अंधे हो गए? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा इस वक्त अनकंफर्टेबल है? आपकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे को नहीं पहचानते आप कि एक बच्चा इस वक्त अनकंफर्टेबल है? उस वक्त क्यों आप चाय और समोसे के हम हर चीज बहुत गफलत में है, मेरी बहन, हम गफलत में है। इन बच्चों के शिकार होने के हम मुजरिम हैं।
کیونکہ ہم اس کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، نہ اس کے بعد اس کی سن رہے ہیں، پھر آج جیسا آپ نے کہا نہ اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ بہت مہذب معاشرے کا شہری بنے گا، ایک رول ماڈل بنے گا. وہ یہ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالرز کے بعد ہم اس بات کو اور کنٹینیو کرتے ہیں. اور میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، آپ میں سے بھی شاید لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایک بچی ایک صاحب اس کو بار بار موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو. وہ جتنی جگہ پارک میں بیٹھ کے انہوں نے اس کو کہا، پھر گاڑی کے پاس لے جا کے کہا، پھر پارکنگ میں کہا، اور فائنلی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کو وہ ری پلے کرتے ہیں، ری پلے کر کے سب کے چہرے انہوں نے بلر کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے برابر والا یہ سن رہا تھا کہ میں اس بچی کو کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلو، لیکن وہ چپ رہا. پھر وہ پارکنگ میں گئے، پارکنگ میں بچی کو کہہ رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے پارکنگ میں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص بچی اجنبی ہے، مگر بار بار بچی کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھو، اور وہ اس شخص نے بھی کچھ نہیں کیا. تو ہم اپنے آپ میں اتنے بزی ہیں کہ آج ہماری برابر والی گاڑی میں اگر ہمیں لگے گا کہ کوئی بچہ ان ایزی ہے یا کوئی بچہ پریشان ہو رہا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ ڈرائیور کے ساتھ ان ایزی ہے، اس کو کوئی کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اور کیا واقعات ہیں. ہم اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہیں. جی بے حس ہیں مطلب ہم لوگ جو ہے. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہم آپ کی امپورٹنٹ بات سے پہلے کالر سے بات کرنا چاہتی ہوں، پھر آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور آپ کے مہمانوں کو سب کو سلام. آپ نے بہت اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کی ہے، اس معصوم کلی زینب، اس کے حوالے سے زینب سے توسط سے تو بات کی، لیکن ہم سارے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ تمام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے سارے بچے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ ہوتے ہیں پھر ایک لہر اٹھتی ہے، کانشیس ہوتے ہیں لوگ، اویئرنیس آتی ہے، نئی اس میں تدابیر کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ نظر رکھیں بچہ بچی چھوٹا اکیلے کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. جو بڑے بچے ہیں ان کے پاس کم سے کم سیل فون ہو، اور معاشرتی طور پہ جو آپ نے کہا کہ اجتماعی طور پہ یہ جذبہ بیدار ہو کہ صرف اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ جیسے آپ نے کار کے واقعے کا ذکر کیا، کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی جب گھر سے باہر نکلے تو یہ سمجھ لیں میرے آس پاس جتنے بچے ہیں یہ میری بچوں کی طرح ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں مجھے تعاون کرنا ہے. اور جب وہ تعاون کرے تو آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ادارے سے تعلق سے ہو یا کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کے ساتھ مل کے اچھائی کو فروغ دیں، برائی کو روکے، اس میں شرمائے نہیں، خوفزدہ نہ ہو. اور اسکول کالج یونیورسٹیز یعنی پرائمری اسکول بھی، ایون ارلی ایجوکیشن میں بھی یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو تھوڑی بہت اس طرح کی احتیاطی تدابیر ان بچوں کو، ان معصوم پھولوں کو ضرور بتائیں تاکہ یہ کانشیسنس آئے اور والدین کھل کے بعض باتیں اپنے چھوٹے بچے. اور اس کیس میں کیا ہے آپ کی بات جو ہے نا زبردستی والی، مجھے یاد آ رہا ہے 1960s میں 1970s میں لوگوں کو یہ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور ایک فلم بنی مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی اور وہ لاہور میں لگی وہاں پہ فلم، باقی ملک میں بھی لگی ہوگی، تو بڑا پیسہ اس پہ خرچ ہوا اور پبلسٹی پہ بھی بڑا پیسہ خرچ ہوا. تو کچھ دنوں کے بعد یعنی اس نے کافی رش بھی لیا. کچھ دنوں کے بعد جو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے، ان سے ان کی بات ہوئی، کسی کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی فلم کیسی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلا ہفتہ تو زبردست چلی ہے اور دوسرا ہفتہ زبردستی چلانی پڑے گی. آپ روز دیکھتے ہیں اس کیس کو اپنا آپ کور کر رہے ہیں، آپ یہاں موجود ہوتے ہیں پوری پروسیڈنگز میں، تو کیس کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیس میں کتنی جان ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ سب سے بہتر آپ جانتے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس سے قبل ایک تحریک شروع ہوئی ہے جو کل سے بلکہ پی ٹی آئی نے اپنا کنٹینر بھی تیار کر لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکلات اب آپ کو پارٹی کو ہیں، کیونکہ بلوچستان میں آپ کی حکومت فارغ ہو گئی ہے، تو کیا معاملات کیا چل رہے ہیں؟ آپ کی جماعت میں بھی اختلافات کی خبریں گھر میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو تحریک چلانے والے ہیں اب جبکہ 4-5 مہینے رہ گئے ہیں حکومت کی مدت پوری ہونے میں، تو اس وقت تحریکوں کا کیا مقصد ہے؟ ذرا کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ یہ تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ مولانا صاحب جو وہاں سے تشریف لائے ہیں
उधर से कनाडा से, वो खास तौर पे इस वक्त क्यों आए हैं? और कुछ इंतज़ार कर लें, 4-5 महीने के बाद आगे इलेक्शंस हो जाएंगे तो फैसला आवाम कर देंगे। अभी क्या तहरीक चलाने का मकसद क्या है? मेरा ख्याल है कि जब आप मकसद की तरफ अपना जहन दौड़ाएंगे ना तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अभी आपने बलूचिस्तान की बात की है। बलूचिस्तान बड़ा एक सीरियस मामला है और इसको बहुत सीरियसली कौम को लेना चाहिए। और मैं आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत घिनौना एक मजाक कौम के साथ हो रहा है। इस पे मैंने परसों एक मीटिंग बुलाई है, उसमें बलोच लीडरशिप भी होगी इंशाअल्लाह। तो उसमें हम इसके सारे पहलुओं पे जो है ना वो गौर करेंगे, इसके असबाब पे गौर करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, और एक सिर्फ 500 वोट लेने वाले बंदे को वहाँ का वज़ीर आला बना दिया है। क्या ज़रूरत थी? ये अपना इस तरह जिसकी खुद ज़मानत जब्त होने जा रही थी उसको अपना वज़ीर आला बना रहे हैं। ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के साथ, इस कौम के साथ, जिसका हम यकीनन जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ केस क्या है समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि केस की नौयत क्या है, केस में कितनी जान है, मीडिया को सब मालूम है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए। बेहतर से बेहतर करने के लिए हम ढूंढते हैं कि फला रिकमेंडेशंस क्या हैं, फला रिकमेंडेशंस क्या हैं। इस तरीके से इसके बारे में हमने प्रॉपर कहाँ हमने देखी कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या चीजें बताएं, या सिर्फ देखा देखी उसने ये बताया इसलिए मैं इस तरीके से बता देता हूँ। तो सर्टन मैनुअल को फॉलो करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, पहले खुद, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, ओवरऑल नंबर 1। और ये एक आध दिन की बात नहीं है, ये आपको कंटिन्यूस लेके चलना पड़ता है। जैसे हर 6 महीने साल के बाद जैसे फायर ड्रिल होती है, उसकी वापस रिहर्सल करवाते हैं, इसकी रिहर्सल होती रहती है, बार बार आपको फिर चेक करते रहना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। वार्निंग साइंस जो बच्चों में होते हैं, जिस्मानी, जैसे बच्चे तकालीफ का बताते हैं, इजहार करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे जैसे मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि पखाने की जगह पे खारिश हो रही है, या खून की शिकायत बता रहे होते हैं, या जैसे कोई भी करीब आ रहा होता है उसको आने, जैसे डॉक्टर ने बताया, करीब आने नहीं दे रहे होते हैं, पहले से उनका रवैया चेंज होता चला जा रहा है, वो बाथरूम में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, या बिल्कुल भी नहीं टाइम लगा रहे हैं, बहुत कम हो गए। तो ये सारे अर्ली साइंस होते हैं, इसके बारे में पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्कस करें। समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि 7 साल से कम उम्र की अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने की, चले बड़े बच्चों का तो नहीं, प्राइम टारगेट एज। हाँ, तो 7 साल से कम उम्र बच्चे, तो माओ की इतनी एक्सेसिबिलिटी होती है, उनको नहलाना, उनको और चीजें करना, कपड़े चेंज कराना, आई थिंक इतनी उम्र तक तो हम कर ही थे। बता रहा हूँ नुसरत, मैं हम स्कूल से ड्रॉप करते हैं, बड़े बच्चों तक हम करते रहे, हम स्कूल से ड्रॉप करते हैं, स्कूल में ट्रेनिंग कराते हैं, और जब हम कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं और माँ बाप को बुलाते हैं ना, आते ही नहीं है, पेरेंट्स की मीटिंग के अंदर आते ही नहीं है, खत लिखने पे नहीं आते, फोन पे नहीं आते। बाद दफा हमें ये भी करना पड़ता है कि हम कहते हैं कि हम आपका बच्चा ही स्कूल से निकाल रहे हैं, उस दिन आते हैं सुनने के लिए। आप जो कह रहे हैं ना कि ये वो तो उनके घर में, वो घर में भी मैं कह रहा हूँ ना गफलत में है। हमने इन बच्चों को, और अच्छा आज मुझे नफ्सियात की बात बता रहा हूँ, बच्चा जब तक बर्गर खा रहा होता है उस वक्त क्या उसको ये पता होता है कि यार ये मुर्गी जानदार थी, इसको किस तकलीफ से गुजरना नहीं होगा ना, वो उस बर्गर को मजे से खा रहा है हमसे, मैं क्योंकि हम उस मुर्गी को क्या समझ रहे हैं, बर्गर को ऑब्जेक्ट है, वो शय है, वो किसी जानदार चीज का नाम नहीं है। तो जब आप इस माहौल से वो बच्चे गुजरते हैं, जब उनके साथ जिस तरह की ज्यादतियां होती हैं, तो दूसरा जो बच्चा है ना
वो उसके लिए शय होता है। आपने देखा है कि ये क्रिमिनल सिर्फ जिनसी तस्कीर नहीं करते, तशद्दुद करते हैं, कत्ल करते हैं, क्यों करते हैं? इसके लिए इनके लिए इंसान नहीं रहता, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे वो बर्गर हमारे लिए जानदार मुर्गी नहीं है, ऑब्जेक्ट है। आप मैं यही आपको कह रहा हूँ कि ये इस जानदार से लेके वहाँ तक जो बेनी बहन ने जो कहा बेहिस्सी, उस सफर को तो देखिए, ये हर वक्त। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, आपको अपने इलाके के हिसाब से तरबियत देनी होगी। इसका मतलब है कि उसकी ज़हनी सतह कितनी है, किसी इलाके के अंदर ज़हनी सतह मुख्तलिफ होगी, ये माँ जानती है। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि माँ से ज्यादा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो उसके जिस्म का हिस्सा रहा है। वो बच्चा उसके जिस्म का हिस्सा रहा है, वो तो नजर से पहचानती है, उसकी हरकत से जो है वो सेकंड में पहचानती है। अगर वो वाकई अटैच आपके छोटे बच्चे का तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसके तो बॉडी पे कहीं भी कुछ हो तो वो माँ को पता होता है, पिंपल भी हो, खराश भी हो, तो ये माँ को पता होता है घुटने पे क्या लगा है, टांग पे क्या लगा है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, नजर नहीं आता, उसको कांटे का निशान नजर नहीं आता। हाँ, मैं कह रही हूं नहीं है। अच्छा रमला, कॉलर के बाद आपने अपना कॉमेंट करना है, और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ जितने बच्चे गायब हुए हैं, जब भी उनकी फुटेजेस आती हैं, ज़ैनब वाले केस में भी, तो आप देखिए कि वो एक बंदे के साथ जा रही है। हमारे घरों में, अगर मेरे घर में मेरे बच्चे ने बाहर जाना है तो वो बगैर बताए हुए नहीं जाएगा, मैं उसे किसी के साथ नहीं भेजूंगी, और अगर वो गया तो उसको पता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे बच्चे कैसे घरों से बाहर निकलते हैं और फिर किसी के साथ भी चले जाते हैं जो घर वालों को पता नहीं होता। ये वाला जो गैप है ना, मैं इससे आपसे बात करूंगी, और फिर आप लोग आप भी इसको कमेंट कीजिएगा कि घर से बाहर निकलना हम अपने बच्चों को देते हैं इजाजत, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पूछे बगैर गली के कोने तक चले जाएं। ये नहीं है, अभी वो बता के जाएंगे। जिनको पता है ना, आप ये बताइए, अगर सुबह काम पे जाएगा तो चचा स्कूल छोड़ के आएगा ना, तो अगर उसको चचा से नहीं बताएंगे, चचा को हाथ नहीं रखेंगे, खतरा घर में है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कैसे सकता है कि दुनिया ना चले, इसी में भेजना पड़ेगा, पता होगा, पता है, चुप बैठे हुए ना, यही तो कह रहा हूँ, हम मुजरिम है, पता है और हम चुप बैठे हुए। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, कमर साहिबा गुजरात से। जी कमर साहिबा। अच्छा जी, जी रमला जी। तो आप जो अभी ये बात कह रही हैं कि आपकी बच्चों की जरूरत नहीं कि आपको वो बगैर बताए जा सके, अब आप अपने बच्चों को कम से कम इतना तो प्रोटेक्ट कर सकती है ना कि आप उसको इतना एतमाद में लें कि वो आपको बगैर बताए बाहर ना जा सके। आप देखती होंगी दोपहर में अक्सर बच्चे बगैर बताए, जब मतलब बहुत से पेरेंट्स दुकानों में खड़े होते हैं, घूम रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, तो वो माएँ उस वक्त क्या कर रही होती है, मतलब अगर वो सो भी रही है तो उनको अपने एतमाद पे इस तरह बच्चों को लेना है कि उनके गैर में भी, मतलब अगर वो घर में भी नहीं है तो उनको बाहर नहीं निकलना, उनको इतना ज्यादा उनको प्रोटेक्ट और एतमाद में लेना है कि उनको जो है वो इस बात में उनको बिल्कुल जो है वो सेफ्टी के बारे में बताना है कि आपको इस तरह बाहर निकलना ही नहीं है। हाँ। अब मेरे बच्चे, वो उनकी मजाल नहीं कि वो बाहर जा सके, क्योंकि मैंने बगैर बताए, हाँ बगैर बताए, बहुत से बच्चे 2-2, 3-3 साल के मैंने बच्चे देखे, वो घर में दोपहरों में घूम रहे होते हैं, दुकानों में खड़े हुए होते हैं, ठेलों में खड़े हुए होते हैं। क्यों खड़े हुए हैं? आप कहाँ हैं उस वक्त? क्यों नहीं देख रहे? हमारे साथ राबिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू। आपके सारे गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, मुझे एक चीज मतलब अपनी पूरी आवाम से भी और अपने मीडिया से भी कहनी है कि हम लोग हर उस चीज का इंतजार क्यों करते हैं कि जब खुद खुदा हादसा कोई उस चीज का शिकार हो जाता है, चाहे वो एयरलाइन का हादसा हो, चाहे बच्चे का हादसा हो, उसके बाद हम सब क्यों जागते हैं? मतलब ये तो ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स है ना, ये तो हर रोज हर चीजों में डिस्कस होते रहना चाहिए। वैसे मॉर्निंग शोज में शादियां और उल्टे सीधे टॉपिक्स और ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन सोशल मैसेज नहीं जाता। आई रिमेम्बर कि जब हम छोटे होते थे, पीटीवी पे एक छोटी सी नेकी के नाम से एक सोशल मैसेज थोड़ी देर बाद चला करता था, जैसे आप किसी अंधे को रोड क्रॉस करा दें या किसी की हेल्प कर दें, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमें मतलब हमारे माइंड में आज तक वो चीजें हैं, क्योंकि हमें वो इंस्टॉल की जाती थी चीजें बचपन से आज तक।
हमारे बच्चों को स्कूल में सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस कराया जाता है, ना उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, ना उनको सोशल अवेयरनेस की बात होती है, ना उनको अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, कुछ नहीं हमें बताया, हमारे बच्चों को बताया जाता। 2-3 दफा मैंने खुद विटनेस किया है, आप यकीन करें मुझे देख के खौफ आता है। इतने छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म में रिक्शा ड्राइवर अकेले ड्रॉप करने जा रहा था, अकेले, उन बच्चों के साथ कोई अडल्ट नहीं था, और वो रिक्शा ड्राइवर लोगों ने रखे में और उनको छोड़ के आ रहे हैं। मतलब ड्राइवर अपने ड्राइवर भी रखे हुए हैं और रिक्शा ड्राइवर भी हैं और इस तरह की अरेंजमेंट। बिल्कुल, और ड्राइवर्स आप यकीन करें, ड्राइवर्स 80% ड्राइवर्स ऐसे हैं कि उनको देख के खौफ आता है, वो तो नहीं खौफनाक उनकी अजीब और गरीब हरकतें और शक्लें हैं, कुछ ड्रग्स में होते हैं कुछ, और फिर वही पेरेंट्स बाद में रोते हैं बैठ के कि जी ये हो गया वो हो गया। आप इतने इग्नोर कैसे कर सकते हैं इन चीजों को कि आप अपनी एज ए पेरेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो हम दूसरों को नहीं ब्लेम कर सकते, हमें अपनी आंखें खोलनी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम इनपुट जो है वो बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सिर्फ ये टॉपिक नहीं, और भी बहुत से टॉपिक हैं जिस पे यकीन करें मैं या मेरी टीम प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे ही लोग, मैं तो आप जैसे नहीं कह रही, हम जैसे ही लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। जो पिछले दिनों भी हमने यूथ पे एक प्रोग्राम किया था, और जो अडोलेसेंस में या इससे आगे आप उस हवाले से हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था कि किस तरह बच्चे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अफेक्शन हो जाती है, और उस पर भी हमें हमारी ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने ये कहा कि ये प्रोग्राम क्यों कर लिया, जबकि इट वाज वेरी मतलब वो अवेयरनेस से भरपूर था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। लेकिन ये चीज़ जब हम और हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी अगर ये सोचेगी कि जी इस पे बात नहीं होनी चाहिए या फलां चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए, वो हमें किसी के थ्रू पता चला, तो फिर हम क्या बात करेंगे। आपने तो बात कही, आपका दिमाग उतना कुशादा है, थैंक यू सो मच, आपने बात हमारे लिए आसान की। लेकिन हम बजाते खुद या हमारी टीम या हम प्रोग्राम के तौर से हम बहुत कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक पे बात करें, मगर टैबू इतने हैं और वो फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि हम मजबूर बड़े वाकई इंतजार कर रहे हैं। टीनेज सुसाइड के जो अटेम्प्ट हैं डॉक्टर साहब के पास डेली बैठे हुए सैकड़ों में हैं, मैं गिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों। और उस प्रोग्राम में आप ही हमारे मेहमान थे और हमें बड़ी बात। और अगर मुझे अपनी बच्चियों को बचाना है कि वो खुदकुशी ना करें तो फिर ये टैबू हो जाएगा। जब 2-4 मर जाएंगी उसके बाद हम सारे निकलेंगे, वही जबानी जमा खर्च करेंगे। अब जी मैं बता रहा हूँ, वही जबानी जमा खर्च करेंगे, किसी और अंदोनाक वाक़े का इंतजार करेंगे, इसी इखलाकी जवाल पजीरी और बेइज्जती का मुजाहरा करेंगे, फिर अपने मौज मेलों में लग जाएंगे, फिर मौज मेलों में जो है लग जाएंगे और फिर बैठ के आंसू। और इस पे आप पोलिटिसाइज करेंगे, पोलिटिसाइज में वो पोलिटिकल नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। आप दफ्तर में भी पोलिटिसाइज करेंगे, आप हर जगह पोलिटिसाइज करेंगे कि जी देखो ऐसा। अमल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे। अमल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अमल तो यहाँ से शुरू होना है ना। यानी मुझे अलर्ट रहना है अपने बच्चों और दूसरे के बच्चों के लिए, मुझे अलर्ट रहना है, वो तो मैं करना ही नहीं चाहता। जब मैं करना ही नहीं चाहता तो बस मैं क्या करूंगा सिवाय जबानी जमा खर्च करने का, कुछ भी नहीं करना। जी डॉक्टर जावेद, माशरा एक दिन में बनता नहीं है और माशरा एक दिन में बिगड़ता नहीं। एग्जैक्टली। ये जो अभी जवाल जो आया हुआ है ये काफी अरसे से चला आ रहा है, हमने अपनी तहजीब और बाकी चीजों को जो भूल चुके हैं, तो एकदम से बनेगा भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। वो जब तक पूरा नहीं करेंगे, ये हैरेसमेंट पे सिर्फ रेप नहीं आता, हैरेसमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन आप उसमें देखें, बच्चों के पास मोबाइल है, उसमें आप पोर्नोग्राफी या कुछ और इस तरह की चीजें उनको भेज देते हैं, उसमें हैरेसमेंट करते हैं। तो हैरेसमेंट की बहुत सारी इकसाम है, जरूरी नहीं कि माँ को बच्चे को ऊपर अब्यूज नजर नहीं आता, बहुत सारे अब्यूज ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते। तो आपको सिर्फ ये है कि आपकी विजिलेंट आय है या नहीं है, आपको खुद को उस चीज के बारे में, आपने कहा ना कि माएँ क्यों नहीं देखती, अगर माँ खुद डिप्रेशन में है, वो अपनी जात से ही नहीं निकल सकती, उसको लगता है कि कुछ तब्दील नहीं हो सकता, मेरा कोई से नहीं है, तो वो क्या करेगी? उसके हाथ में भी नहीं है। तो पहले अपना देखें, जैसे हवाई जहाज में होता है ना कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं फिर दूसरे को लगाएं, तो पहले एवरी टाइम में यही अनाउंस करते हैं, पहले अपनी सेहत का लगाएं, उसके पहले अपनी सेहत को गौर करें, उसके बाद फिर आप इर्द गिर्द को देखने के काबिल रहेंगे, वरना कैसे करेंगे आप? सही बात है। और ये आपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अच्छी बताई कि आपको विजिलेंट होने की जरूरत है और फिर ही आप दूसरे की। अच्छा, ये सिर्फ डिप्रेसिव मदर्स की बात नहीं है, जो लोग लग्जरी में जिंदगी गुजार रहे हैं उधर भी आप देखिए कि कल्चर ये है कि माँ से ज्यादा मेड क्लोज है।
میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں کر رہی، نہ کسی پہ سوال اٹھا رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے آنکھوں دیکھی جو چیزیں ہیں میری، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایموشنل ٹائم جہاں بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، شاید ہم بھی مس کر دیتے ہوں گے، کبھی ہم جاب پہ ہوتے ہیں یا کہیں، لیکن وہاں وہ میڈ موجود ہوتی ہے. ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ آپ نے کس کو ترجیح دی ہوئی ہے؟ آپ نے اپنی ذات کو کچھ ضرورت سے زیادہ تو ترجیح نہیں دی ہوئی ہے کہ آپ کو باقی چیزیں کچھ نظر ہی نہیں آتی. تو یہ بہت سارے اینگلز ہیں. اس کا حساب دنیا اور آخرت میں دینا ہوگا، اس کا سوال پوچھا جائے گا. بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے ساتھ جو ہوا یہ ماں باپ سے ہی پوچھا جائے گا. ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اس کا جواب بھی دینا. ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کنکلوڈ کیجیے گا آفٹر دا کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گیسٹ کو میرا سلام. وعلیکم السلام. پہلے تو میرا یہ سوال ہے، دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اس طرح کا پہلے ماحول نہیں تھا. زیادہ تر یہ جو ہو رہا ہے زینب قتل کیس ہوا ہے، اس کے بعد کراچی میں جو حادثات ہوئے ہیں، تو یہ سارے جو ہے گاؤں جس کا مطلب بیکورڈ ایریا جو ہے ان سائڈ سے شروع ہوئے ہیں. اچھا نہیں، ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے گاؤں میں ہو رہے ہیں شہروں میں نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کیا یورپ تک ہو رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سائمہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر دیجیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہم اپنی بینگ اے پیرنٹ اپنی رسپانسبلٹی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں چلو اس کو یہ لے جائے گا، اس کو وہ کام کروا دے گا، اس کو وہ پڑھا دے گا. مطلب ہزاروں چیزیں. فار انسٹنس ٹیوشن والا ایک آیا ہے، ٹھیک ہے، اب ٹیوشن والا ٹھیک ہے، اگر آپ ٹیوشن پڑھوا بھی رہے ہیں تو آپ اس کو ایک ایسے کونے کی جگہ پر لے جا کے نہیں بٹھائیں. آپ اپنی نظر ایٹ لیسٹ اتنی آپ ویجیلنٹ تو رہیں کہ آپ سامنے وہیں پر ہی ایسی جگہ بٹھائیں جہاں آپ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اور وہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر چیز فزیکل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہاں باتوں سے بھی بہت سی چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. کنوینس تو پہلے باتوں سے کیا جائے گا نا، ظاہر سی بات ہے. اس کو کسی طرح سے اس کا برین واش کرنا یا کہیں لے کے جانا ہے واٹ ایور. بہرحال یہ ضروری ہے کہ آپ وہیں پر ہی رہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے آرام کی خاطر کہ میں چلو سوتی رہوں گی، ڈرائیور لے کے چلا جائے گا، ڈرائیور ہے بھی تو آپ ساتھ بیٹھ کے چلے جائیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اکیلا ہوتا ہے اور وہ کہیں پر بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. کڈنیپنگ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو رونما ہوئے ہیں، صرف یہی نہیں، صرف کڈنیپنگ فار رینسم، اس کے اتنے واقعات. اس کے علاوہ ان کو تھوڑی اویئرنیس دینا بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری دی جائے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، اور بہت شکریہ جو آپ نے کہا زبانی جمع خرچ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بنیاد تو رکھی، آگے بھی انشاءاللہ بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور کیونکہ زینب کا تذکرہ زیادہ ہوا ہے، کافی ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹی وی پر اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. سوشل میڈیا میں زینب سے پہلے اور زینب کے بعد 2-3 بچیاں ہیں جن کے نام میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی، ان کے بھی واقعات ہوئے ہیں. کوئی ابھی تک نہیں ملی ہیں، کوئی مل گئی ہیں. اللہ کرے کہ ان تمام بچیوں کا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور یہ خیریت سے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں. اور زینب کے معاملے میں پرٹیکولر ہماری یہی خواہش ہے، یہ ہماری دعا ہے کہ ان کو انصاف ملے. لیکن اب آل ہیز بین ڈن. اب یہ ہے کہ آگے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں اور ہم اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا بٹ یہاں ہماری چھوٹی سی جو کوشش تھی وہ پوری کی ہے. لیکن اس شو کے بعد مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی اپنی طرف سے بینگ پیرنٹس، بینگ نیبر، بینگ پارٹ آف دا سوسائٹی، جہاں کہیں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے کہیں بھی بینیفیشل ثابت ہو سکیں، وہ ہمیں ویجیلنس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. آپ سب اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.